السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے راہ غیر، جو کہ تحریر ہے مریم رحیم کی، اور میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 1۔ باب اول، قبل موت یا بعد از موت؟ غیر ہے راہیں قبل موت۔ پھر پڑھنے لگے ہم دھیرے دھیرے، کوئلے جو دہکتے ہوئے جلا گئے تلوے پاؤں کے، لیا راہ نے پھر موڑ نرالا، ملے ہمیں کچھ ہمراہی، بڑھتے رہے ہم سنگ ان کے، کئی بلدار راستوں کو پار کیا، کئی پھانس چبھی، کئی زخم لگے، پھر ہوئی ملاقات اس سے ہماری جس سے ہوتی ہے زندگی میں بس ایک ملاقات، اور چھین لی جاتی ہے ہم سے ساری دل عزیز دوست، اور تھما دیا جاتا ہے ہمیں راہ غیر کے موت کے۔ عذر شکیل احمد۔ کچھ ماہ قبل یہ گلی اس وقت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اور رات کا پچھلا پہر تھا جس وقت ہر زیرو خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، مگر کچھ شیطان کے چیلے اس وقت ہی جرائم کرنے کے لیے سرگرم ہوتے۔ ایسے میں ایک سیاہ گاڑی بھی آ کر اس اندھیرے منظر کا حصہ بن جاتی ہے، سیاہ ہڈ اور سیاہ ہی پینٹ پہنے ہوئے، منہ پر سیاہ سرجیکل ماسک پہنے، جس سے بس اس کی سیاہ آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ وجود بھی اسی اندھیرے منظر کا حصہ لگ رہا تھا۔ پت جھڑ کا موسم تھا، درختوں سے پتے گر کر زمین کا حصہ بن رہے تھے، جو اس کے بیش قیمت سیاہ سنیکرز کے نیچے آ کر اپنی قیمت کو رو رہے تھے اور شور کا باعث بن رہے تھے۔ کچھ دور چل کر وہ سایہ ایک اندھیری گلی میں مڑ گیا، اپنے ہڈ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتے چلتے اس کی کسی اور کی موجودگی کا بھی احساس ہوا تھا۔ جیب میں موجود خنجر پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی، پھر کچھ دیر اسے کچھ محسوس نہ ہوا، جیسے اس کا تعاقب کا چوکنا ہو گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اس کو پھر سے کسی کی نظر کا احساس ہوا۔ تیز دھار چاقو ہاتھ میں پکڑے وہ وجود جھٹکے سے مڑا تو وہاں کسی زیرو کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کے ہونٹوں کے کناروں پر پراسرار شیطانی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مڑ کر بالکل سامنے ایک سفید عمارت پوری شان سے کھڑی اندھیرے پر راج کر رہی تھی۔ اس عمارت کو دیکھ کر اس کی سیاہ آنکھیں چمک کر سیاہ ہو گئی تھیں۔ کئی یادوں کے جھرمٹ نے ذہن پر پہرا دے دیا تھا۔ سر جھٹکا اور وہ وجود عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ عمارت کے باہر سیاہ وردی پہنے دو سیکیورٹی گارڈ اونگ رہے تھے، مگر اس کو قریب آتا دیکھ کر مستعد کھڑے ہو گئے، اس سے پہلے کہ وہ انسان عمارت کے اندر جاتا کہ ان سے ایک گارڈ نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک لیا تھا۔ وہ وجود آنکھوں میں سر تاثر لیے جھٹکے سے رکا تھا۔ سر نے منع کیا ہے کہ کسی ایرے غیرے کو بھی اندر آنے نہیں دینا۔ ہاتھ ابھی بھی ویسے ہی اس کے آگے ہوا میں تنا ہوا تھا۔ چمکیلے چاقو پر اس کی گرفت سخت ہوئی، آنکھوں میں کاٹ پیدا ہوئی، اور لمحے بھر کو چاقو سیکیورٹی گارڈ کے تنے ہوئے ہاتھ پر پڑا تھا۔ سوری جی، اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، یہ نیا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا جی۔ یہ نیا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا جی، دوسرے گارڈ نے تیزی سے کہا، اور پہلے گارڈ کو گھورتے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کر دیا۔ اب اس کا راستہ صاف تھا۔ سمجھا لو اس کو، میرا ہاتھ سوچ سمجھ کر نہیں چلتا، سرد لہجے میں کہا، اور چمکتا ہوا چاقو ہڈ کی جیب میں واپس رکھ لیا تھا، اور آنکھوں میں سر تاثر لیے اس شخص کو گھورتے ہوئے وہ وجود سفید محل کی وسطوں میں کہیں کھو سا گیا تھا۔ اندر کی جانب جائیں تو یہ ایک ملاقاتی کمرہ تھا، سفید دیواروں کے ساتھ سرمئی فرنیچر تھا، جیسے کہ بدی اور اچھائی کا سنگم ہو رہا ہو۔ سرمئی صوفے پر بیٹھا ایک شخص اپنی ٹانگیں سامنے پڑی سینٹرل ٹیبل پر جمائے ہوئے، ہاتھ میں مختلف انگوٹھیاں پہنے اور سلگتا سگریٹ تھامے سیاہ ہڈ والے انسان کو دیکھ کر پوری خباثت سے مسکرایا تھا۔ آؤ، تمہارا ہی انتظار تھا۔ وہ انسان اب سامنے رکھے سرمئی صوفے پر بیٹھا، ہڈ اور ماسک ہنوز پہنے ہوا تھا۔ آدمی نے سر تا پیر نظریں اس کے وجود پر جما دی۔ وہ وجود سرد اور خاموش نظروں سے انہیں دیکھے گیا۔ آدمی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ان کی بات پر وہ وجود غصے کی زد میں آ گیا تھا۔ یہ بس آپ کے رکھے ہوئے نئے عزیز نے روک لیا تھا، سمجھا دیجیے گا اسے، میرا راستہ نہ روکے اب۔ وہ اس کی بات پر ہنسا تھا۔ اسے میں نے ہی کہا تھا، سراج نے مسکراتے کہا۔ کیا آپ نے؟ کیوں؟ ابروچ کا کر اس نے پوچھا تھا۔ سراج نے آگے ہو کر سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں چٹکی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وجود نے اپنی سیاہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ وہ ہاتھ پشت پر باندھے دائیں بائیں ٹہلنے لگا تھا۔ چھوڑو، بیچارہ نیا ہے، اپنی ڈیوٹی اچھے سے نبھا رہا ہے، کہیں آپ نے جان بوجھ کر تو نہیں بولا؟ پھر سے ابروچ کا کر سوال کیا تھا۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑے ہنسنے لگے۔ ہا ہا ہا، چالاک ہو، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ کچھ پل کو نامحسوس سا وقفہ پیدا ہوا تھا۔ سراج واپس جگہ پر ٹانگ جمائے بیٹھے اور دو انگلیوں کی مدد سے سگریٹ واپس لبوں سے لگا لیا تھا، پھر کچھ ٹہر کر اس کا دھواں ہوا میں آزاد کیا۔
हाँ, जानबूझकर बोला था। बस इम्तिहान ले रहा था कि वो इंसान इस काबिल भी है यहाँ काम करने के या नहीं। तुझे तो पता है, ये धंधा ही ऐसा है, किसी पर एतबार नहीं कर सकते हम। उसने मस्कीन सी शक्ल बनाई, सिगरेट एश ट्रे में फेंका था और बगैर उसकी स्याह आंखों को देखकर तासुरात जानने की कोशिश की, मगर मास्क की वजह से कुछ समझ नहीं आया था। वो वजूद उनकी आंखों में आंखें डाले चाकू से खेलने लगा था। आप बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ने लगे हैं, नीचे लाना होगा। सामने वाले की बात पर वो एकदम गुस्से का शिकार हुए, मगर कुछ सोचकर चुप रहे। जरूर इसमें भी कोई मफाद होगा, वरना वो यूं खामोश ना रहते। सामने वाले ने उनकी तरफ देखा तो इस्तेज़ाइया हंसा। मुझे क्यों बुलाया? सर्द आवाज में पूछा था। सिराज ने गहरी सांस बाहर खारिज की और सोफे के हत्थे पर अंगूठियों से भरा हुआ हाथ रखा था। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखें खोल कर रखो, क्योंकि कोई है जिसे हमारे काले धंधे का इल्म हो गया है। वो कौन है नहीं जानता, बस इसकी मौजूदगी ने गहरे सबूत छोड़े। मैं नहीं चाहता किसी बेवकूफ़ की वजह से कुछ खराब। वो वजूद अपनी जगह से उठा था। चाकू पर गिरफ्त मजबूत हुई और लबों पर मुस्कुराहट पैदा। मेरा इस धंधे के साथ सालों का नाता है, मुझे सब मालूम है। आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। लम्हे के अंदर सिराज के वजूद में फिर गुस्से की लहर पैदा हुई थी। चेहरा सुर्ख हुआ, मगर इसको जैसे कुछ फर्क ना पड़ा। इस चेहरे के तासुरात अब बदले से थे। अब इनमें कुछ सच सा था। और कुछ कहना है या फिर मैं जाऊं? सिराज ने बामुश्किल खुद को मुस्कुराने पर मजबूर किया। आपको बॉस याद करें, कितने दिनों से। आप मिल लीजिए, उन्होंने उसकी स्याह आंखों में देखकर कहा। उसके चेहरे पर लम्हे भर को एक साया सा लहराया था, लेकिन उसने फौरन अपने चेहरे पर सर तासुरात सजा ली। फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं इनसे मिलने के लिए। इनसे कह दीजिएगा कि जब मेरा दिल चाहेगा मैं तभी। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ी और जाने के लिए रुख दरवाजे की जानिब मोड़ा। वो वजूद जैसे आया था वैसे ही चला गया। पीछे बैठे सिराज उसे तरह आमेज निगाहों से देखे गए। बाहर निकलते उसने जेब से मोबाइल निकाला, कोई नंबर डायल किया और तंजिया नज़रों से उस सफ़ेद इमारत को देखे गया। सिराज की कोई कमज़ोरी तलाश करो। इस वजूद ने लफ्ज़ अदा करते ही दूसरे की सुने बगैर फ़ोन काट दिया था और अंधेरे में कहीं गुम हो गया था, जैसे वो कभी दुनिया में आया ही ना हो। हाल रात ने अपने पर फैलाए तो तारीकी ने हर सू पंजे काट दिए थे। ऐसे में बारीक सा हिलाल इस अंधेरे से लड़ने की भरपूर कोशिश कर रहा था, जो कुछ हद तक कामयाब भी हो चुका था। यहाँ कोई जीरू नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आकर कच्चे पक्के से रास्ते पर खड़ी हुई थी। रात के इस पहर जब मुकम्मल स्याही में दिखती कब्रों से वहशत होती थी, तो वो आखिर को इस पहर क्यों चलाया था? कब्रिस्तान दूर कहीं कोई दूर, दूर कहीं कोई जर्द बत्ती जलती हुई थी, जिससे दाखिल होने वाले शख्स के लिबास का मालूम हो रहा था। सफ़ेद रंग की शर्ट जिसकी आस्तीनें कोहनी तक मुड़ी हुई थीं और स्याह पैंट, उसके जूतों पर मिट्टी की गहरी गिर जमी हुई थी। उसके दाएं हाथ में एक घड़ी थी जो इस वक्त रात के 1:30 बजा रही थी। इस कब्रिस्तान की कच्ची ज़मीन पर जा बजा कांटेदार झाड़ियाँ बिछी हुई थीं, जिसे वो अपने भारी कदमों तले रोंद रहा था। अब वो शख्स छोटे चबूतरे के गेट खड़ा था। इनसे आगे ही उसके करीब तरीन लोगों की कब्र थी, उसके माँ और बाप की। वो इस चबूतरे से गुजरकर इस तरफ आया था। ये कब्र कुछ इस तरह बनी थी कि उसकी माँ की कब्र एक कोने पर थी। कब्र की सफ़ेद पत्थरों से बनी तख्ती पर स्याह रोशनाई से उसकी माँ का नाम दर्ज था, मगर अंधेरे के बायस नजर न आया था। वो कब्र एक चबूतरे पर से वो कब्र एक चबूतरे जैसी थी। इस, उसके बीच एक दो बंदों जितने के खड़े होने की जगह थी। इसके बाद उसके बाप की कब्र थी। वो भी बिल्कुल इसी शक्ल की बनी हुई थी। उसकी तख्ती पर भी स्याह रोशनाई से उसके मरहूम बाप का नाम दर्ज था। वो अपनी माँ के कदमों की जानिब बैठा था। उसका सर झुका हुआ था। शायद वो रो रहा था, क्योंकि अंधेरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मेरे पास मौजूद नहीं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मेरे पास मौजूद नहीं। बस एक चीज़ की कमी है, वालदैन की, जो कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। वो ही नहीं है मेरे पास। आंसू अब के रवानी से बहने लगे। ऐसा महसूस होता था सालों पुराना जख्म अब भी वैसा ही था। गीली आंखें उठाकर कब्र की मिट्टी को छुआ। आज मेरे पास कई ऐसे दोस्त हैं जिनके पास सब कुछ है। उनके पास कई आसाइशें मौजूद हैं, वालदैन भी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ जिनके पास नहीं होती उनसे उनकी कमी पूछें। हाथ वापस खींचा और अब वो खाली ज़हनी के आलम में हथेली को देखे गया। एक आंसू फिसलकर मिट्टी में जज्ब हुआ। हल्के अंधेरे में उसके लब हिलते रहे थे। आज कोई मुझसे आकर पूछे कि हाशिर हुसैन, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तो मैं उनसे कहूँगा कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं। मेरे पास मेरे वालिदैन नहीं। आंसू मुतवातिर उसका चेहरा भिगो रहे थे। अम्मी, आप दोनों ने बहुत जल्दी कर दी जाने में। आवाज़ में हल्की सी नमी थी। वो सर झुकाए शिकवा करने लगा। आप दोनों को जिंदा रहना था अभी, फिर आप दोनों ने तो जाने में जल्दी क्यों की? उसने सर उठाकर आंसुओं से भरी आंखों से उस तख्ती पर नजरें जमा दी। देखें, आज मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी की अम्मी।
आप चाहती थी ना कि बड़ा आदमी बनूं, उठकर देखें मैं बन गया हूँ, वो जो कुछ आप देखना चाहती थी। अब लोग मेरी इज्जत भी करते हैं। उसकी आवाज़ में नमी घुलने लगी। किसी ने उसके पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखा था, तो एक झटके से उसने अपने आंसू साफ किए, मुबादा कहीं वो पकड़ा ना जाए। मगर आंसू थे कि रुकने का नाम ही ना ले रहे थे। उसने अपनी गीली नज़रें उसकी जानिब की तो वो एक आदमी था जो यहाँ इन कब्रों की देखभाल के लिए ही पाया जाता था। बच्चे सब्र करो। इस आदमी ने मुस्कुरा कर उसे देखा। वो जब भी यहाँ आता था तो उसे देखता था। उसने इस आदमी के हाथ पर नज़र डाली तो इसमें नीले रंग का डोल था जो फिलवक्त खाली था। तुम्हारा शुक्रिया बेटा कि तुम आते हो, वरना यहाँ ऐसे भी लोग इस मिट्टी तले दफन हैं जिनके प्यारे उसे ज़मीन के सपुर्द करके फिर वापस नहीं लौटते। तुम्हारे अपने तो खुशकिस्मत वाक़या हुए हैं। वो आदमी उसका कंधा थपथपा कर उसे यहाँ से वो आदमी उसका कंधा थपथपा कर अब यहाँ से चला गया था। उसने भी एक अलविदाई नज़र इन कब्रों पर डाली और फिर अपनी वापसी की राह पर गामजन हो गया। कोई उसका जानने वाला उसे देख लेता तो यही कहता कि अपने माँ बाप की मौत से कबल का हाशिर हाल के हाशिर से कदरे मुख्तलिफ था। ये एक कमरे का मंजर है जिसमें दीवारें गहरे नीले रंग की थीं और इनकी मुनासबत से सफ़ेद फर्नीचर ने उनकी ताबनाकी में इजाफा किया हुआ था। वो आईने के सामने खड़ा पुलिस यूनिफॉर्म में मौजूद था। उसकी हेजल रंग आंखों में उदासी छाई हुई थी। वो आईने में अपने अक्स को देख रहा था। उसके कंधे पर चमकते 3 सितारे उसकी कामयाबी की दलील पेश कर रहे थे। बाल सलीके से बने हुए थे। उसके नक्शो निगार बिल्कुल अपने बाप की तरह थे। सब उसे कहते थे कि वो अपने बाप की जवानी है। उसे खुद पर फख्र महसूस होता था। जब लोग उसे उसके बाप की मुशाबहत कहते थे, वो अपनी माँ से भी मिलता था, लेकिन कद काट उसे बाप से वर्षे में मिला था। आईना देखते देखते वो किसी अलग ही मंजर में गुम हो गया था। जैसे सामने आईना नहीं बल्कि वही मंजर चल रहा हो और वो सब अपनी आंखों से देख रहा हो। अम्मा, 5 साला ताबिश अपनी अम्मा को मुखातिब कर रहा था, जो उसके सामने बैठी किसी सोच में गुम दिखाई दे रही थी। इन्हें उसकी आवाज़ हाल में ले आई थी। हाँ बेटा बोलो। उन्होंने उसके फूले हुए गालों पर हाथ रखा था। बाबा की ख्वाहिश थी ना कि मैं भी पुलिस ऑफिसर बनूं। ताबिश के हाथ में एक फ्रेम था जिसमें एक आदमी पुलिस यूनिफॉर्म में मुस्कुरा रहा था। वो इनकी तस्वीर देखते उस पर हाथ फेरते मुस्कुरा कर कहने लगा। उसका सारा ध्यान इस तरफ ही था। जी बेटा, क्या आप अपने बाबा की ख्वाहिश पूरे करना चाहेंगे? उसकी माँ ने नम आंखों से मुस्कुरा कर अपने बेटे से पूछा। नन्हे ताबिश ने तस्वीर से नज़र हटाकर अपनी माँ को देखा और उसकी हेजल आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसकी माँ ने नफ़ी में सर हिलाते उसकी माँ ने नफ़ी में सर हिलाते उसे समझाया था। बेटा, जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उसके लिए रोया नहीं करते, बल्कि उनके लिए दुआ करते हैं। नन्हे ताबिश ने जल्दी से आंसू वापस अंदर खींचे और फिर लबों पर जुबान फेरी। जी अम्मा, मैं अपने बाबा की ख्वाहिश पूरी करूंगा और मैं सबको बताऊंगा कि मैं एक बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर हूँ। वो गंदे वाले पुलिस नहीं जो लोगों को मारते हैं। जैसे मेरे बाबा और दादा ईमानदार थे, वैसे ही मैं भी बनूंगा। मंजर धुंधलाया तो वो हाल में वापस आया था। उसने महसूस किया उसकी आंखें आंसू से भरी थी। ताबिश, अच्छे बच्चे रोते नहीं और ना ही किसी शहीद हुए इंसान के लिए रोते हैं। उसने खुद को संजिश की। उसे अपने सरापे को देखकर एक फख्र महसूस हो रहा था। सर झटकता वो कमरे से बाहर निकल गया। हम अपने अगले मंजर की जानिब चलते हैं, जो कि इससे कदरे मुख्तलिफ था। एक लड़की अपने बावर्ची खाने में खड़ी सुबह और दोपहर के खाने का इंतजाम कर रही थी। एक चूल्हे पर चाय चढ़ी हुई थी और दूसरे पर हांडी चढ़ी थी। रम्स बेटा, उठ जाओ, देर हो रही है आपको स्कूल से। इसका घर बड़ा ना था, इसीलिए आवाज़ एक कमरे से दूसरे कमरे तक बआसानी मुंतकिल हो जाती थी। ये घर बहुत छोटा सा था। वो किराए के 2 कमरे और एक छोटे से सहन वाले घर में अपने 5 साल के बेटे और बाप के साथ रहती थी। उसका एक भाई भी था जो न जाने कहाँ होता था। उसका बाप नकारा था। वो जुआ खेलता था अपने कुछ मवाली दोस्तों के साथ। 20 साल कबल इन लोगों ने अपना पिछला घर जुए में हार दिया था। बाप के नकारा होने की वजह से उसने घर की जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर ले लिया था। पिछले साल पिछले 5 सालों से वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी जैसे तैसे मेहनत करके चला रही थी। ऐसे में उसके जीने की वजह बस उसका इकलौता 5 साला बेटा था, वरना तो वो कब की हालात के हाथों हिम्मत हार चुकी होती। पिछले कुछ सालों से उसकी आजमाइशें जारी थीं। कोई ना जानता था कि वो कब ख़त्म होंगी। वो सारे काम ख़त्म करके आई तो रामिस भी सोया हुआ था। उसने पलंग पर बैठकर उसे उठाया। रामिस बेटे, आपको देर हो रही है मेरी जान। उसने रामिस के कान में सरगोशी नुमा आवाज़ निकाली थी तो रामिस मुस्कुरा दिया। मुस्कुराने से उसकी शहद आंखें छोटी हुई थीं। फजर को हैरत हुई। आप जाग रहे थे गंदे बच्चे? रामिस ने खिलखिलाकर उसे देखा, जो उससे नाराज़ होने की एक्टिंग कर रही थी। मामा, जब आपको पता है कि मैं इसी तरह उठता हूँ तो फिर आप क्यों किचन से आवाज़ देती? फजर ने आंखें छोटी किए कुछ देर को घूरा था। मैं समझती हूँ आज रामिस साहब खुद ही उठ जाएंगे, लेकिन नहीं, रामिस तो रामिस है। रामिस ने मासूमाना अंदाज में उसे देखा तो फजर को उस पर टूट कर प्यार आया था। फजर ने अपनी दोनों बाहें फैला दी थी। वो रामिस के बाल सहला रही थी जो एक सोच
اس کے ذہن میں نمودار ہوئی کہ اگر اس کا یہ بیٹا نہ ہوتا تو اس کی جینے کی تمنا ہی مر جاتی۔ یہ کراچی کا ایک مشہور اور معروف علاقہ تھا، جہاں بلند و بالا عمارتیں اپنی پوری چکا چوند اور خوبصورتی اور رعنائی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ دیواروں پر جا بجا شیشے کا کام ہوا تھا اور اتنے چمکدار تھی کہ اپنا عکس بآسانی اس میں دیکھ سکتے تھے۔ ایسی ہی ایک عمارت کے اندر کا رخ کرو تو اندر ریسیپشن پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ اپنے سامنے ایک فائل پھیلائے اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ یہ ایک کافی عالیشان آفس تھا۔ اب تم اطراف میں اپنی نظر دوڑاؤ تو تمہیں اس پورے آفس میں ہر جگہ میز اور اس کے ساتھ ایک کرسی نظر آئے گی، جیسے عموماً ہر آفس میں پائے جاتے ہیں۔ پورے آفس میں بس کی بورڈ کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ایسے میں اس لڑکی کی ہیل کی آواز پورے آفس میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا، مگر اس کی طائرانہ نظریں ارد گرد کا باریکی سے جائزہ لے رہی تھیں۔ ایسے میں وہ چلتے چلتے ایک لڑکی کے پاس رکی۔ اس لڑکی کے اسٹریکنگ شدہ بال کھل کر کندھوں پر گرے ہوئے تھے۔ اس نے ایک لمبی سیاہ اسکرٹ کے ساتھ لانگ سیاہ شرٹ بھی پہن رکھی تھی اور چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ بھی تھا۔ وہ آرام سے ہاتھ آپس میں سینے پر باندھے اس لڑکی کو دیکھ کم گھور زیادہ رہی تھی۔ فجر اپنے کام میں اتنی محو تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ لڑکی کب اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ فجر نے سادہ لان کے شلوار قمیص پہن رکھا تھا، دوپٹہ سر پر ڈال رکھا تھا اور سیاہ بال ہائی پونی ٹیل سے باندھے، کان میں چھوٹے ٹاپس پہنے اور ہلکے میک اپ میں موجود تھی۔ کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے وہ سرعت سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تو نظر اس لڑکی پر ٹھہر گئی تھی۔ ہاتھ ادب سے ایک ساتھ جمائے وہ اسے ہم کلام ہوئی۔ السلام علیکم میم۔ اس نے سر ہلا کر اس کے سلام کا جواب دیا تھا، تو وہ بھی واپس ویسے ہی انداز میں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی فجر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میم، کیا کوئی پرابلم ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھ لیا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ سرد نظروں سے اطراف میں نظریں گھماتے سب دم سادے بیٹھے کنکھیوں سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ سیاہ بالوں والی لڑکی نے نخوت سے سر جھٹکا اور اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ پیچھے سب نے اپنی رکی ہوئی سانسیں خارج کی۔ یہاں پر موجود ہر انسان پر اس کا رعب قائم تھا۔ سب اسے بات کرنے سے کتراتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ہمہ وقت ایک بیزاری سی چھائی رہتی تھی۔ یہ بیزاری کی دبیز تہ صرف ایک صورت میں چھٹتی تھی جب وہ انسان اس کی نظروں کے سامنے ہوتا تھا۔ وہ انسان جسے وہ اپنا سب کچھ مانتی تھی، مگر آج تک اس سے کچھ کہنے کی ہمت نہ کر پائی تھی۔ وجہ اس کی انا تھی، جو اسے اپنے محبوب سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ تابش پولیس اسٹیشن میں موجود اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے اس کی ٹیبل پر 2 چائے کے خالی کپ رکھے ہوئے تھے، جو وہ تھوڑی دیر پہلے ہی پیے جا چکے تھے۔ اس کے سامنے ایک شخص سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کہیں انکل، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اس نے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں ٹیبل پر جمائے انہیں دیکھا۔ بیٹا، میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس آدمی کی آواز میں تکلیف صاف کھلی ہوئی تھی۔ اس نے سوالیہ انداز میں انہیں دیکھا، پھر مخاطب ہوا۔ آپ مجھے تفصیل بتائیے انکل کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ حادثہ کب پیش آیا اور کس وقت آیا تھا؟ آدمی نے مٹھی زور سے بند کی۔ 2 دن پہلے میرے بھائی کے لڑکے نے کیا ہے سب۔ اس آدمی کی روتی ہوئی آواز گونجی تھی۔ تو آپ تب کیوں نہیں آئے؟ اس آدمی نے اپنی آنسوں سے بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں بدنامی کے ڈر سے چپ تھا۔ تابش نے افسوسناک انداز میں اسے دیکھا۔ آپ چپ تھے یا آپ کو چپ کروایا گیا تھا؟ اس آدمی سے کوئی جواب نہ بن سکا تو سر جھکا لیا۔ تابش کو ان کا چہرہ دیکھ کر ترس آیا تھا۔ انکل، آپ پریشان مت ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے میں ہر ممکن کوشش کروں گا۔ حسن، FIR درج کرو۔ FIR درج کروا کر وہ آدمی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ تابش فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے آیا تھا اور ان کے جڑے ہاتھ تھامتے اس آدمی کو اپنے گلے لگا لیا تھا۔ وہ آدمی سسکیوں سے رونے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ آدمی چلا گیا تو تابش کے ذہن میں پھر سے ایک اور منظر لہرانے لگا۔ اس منظر میں وہی تھا، وہ اس کے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا جو اسے ایک شہید ہونے والے کی کہانی سنا رہا تھا۔ پھر اس کے سینے پر ایک گولی لگی اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ بیٹا، بابا، لیکن وہ اپنی جان بھی تو بچا سکتا تھا، وہ بھاگ سکتا تھا۔ اس نے اپنی ننھی سی آنکھوں میں حیرت لیے پوچھا۔ اس کے سامنے بیٹھے شخص نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں بیٹا، وہ چاہتا تو بھاگ سکتا تھا، لیکن شہید اللہ کے لیے ہوا ہے نا، تو وہ اللہ کو کیا منہ دکھاتا؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر اللہ اسے سوال کرتے۔ اسی لیے وہ اللہ کے پاس ایک ہی جس میں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا تھا، کیا آپ شہید ہونا پسند کرو گے یا بھاگ جانا؟ ان کا سوال سنے تابش نے کچھ سوچ کر انہیں دیکھا تھا۔ بابا، میں شہید ہونا چاہوں گا۔ اس کا جواب سن کر وہ شخص مسکرا دیا تھا، پھر کہنے لگا، اس کے لیے آپ کو اللہ پاک کا پسندیدہ انسان بننا ہوگا۔ کیا آپ ان کے پسندیدہ انسان بنو گے؟ اس کے چہرے پر ایک پل کو اداسی کا گھراؤ ہوا تھا۔ اس نے اداس نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ پتہ نہیں بابا،
वो शख्स हंसने लगा। अगर मैं कहूँ कि आप पुलिस ऑफिसर बने तो आप बनेंगे? उन्होंने सवालिया अंदाज में उससे पूछा था। अंदर कहीं उनके दिल की तमन्ना थी कि वो पुलिस अफसर बने, उनकी और उनके वालिद ही की तरह। ताबिश की आंखें चमक उठी थीं, जैसे उससे फैसला हो गया। जी बाबा। उसका जवाब सुने वो शख्स खुश हुए, फिर कहने लगे, लेकिन एक बात, आप हमेशा सच्चाई का दामन थामे रखेंगे, एक अच्छे ईमानदार पुलिस ऑफिसर की तरह। सब लोगों की मदद बगैर सोचे समझे करेंगे। उसने अपने बाप की बात सुनते सर हिला दिया था। माजी की भूल भुलैयों से उसे फोन मोबाइल की आवाज़ ने निकाला था। जेब से मोबाइल निकाल कर देखा, स्क्रीन पर पढ़ाकू आदमी लिखा नजर आ रहा था। एक पल में संजीदा से बैठे ताबिश अलवी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रेंगने लगी। उसने कॉल यस की थी कि दूसरी जानिब से आवाज़ आई, कहाँ हो, अभी तक आए क्यों नहीं? उसके सवाल पर उसे हंसी आ गई। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुमने पिछले जन्म में मेरी बीवी का किरदार अदा किया होगा। क्या मतलब? मोबाइल की दूसरी तरफ से हैरानी भरा जवाब मौसूल हुआ। मतलब ये कि बीवियां अपने शौहरों से इसी तरह पूछती हैं कि कहाँ हो, कब आओगे, खाना खा लिया। इसलिए मुझे शक हो रहा है कि तुम कहीं। मोबाइल की दूसरी जानिब से कुछ बड़बड़ाकर गुस्से से फ़ोन काट दिया गया था। अब वो घर जाने की तैयारी कर रहा था। इससे सोचा उसने सोचा घर जाकर थोड़ा आराम करेगा और फिर ऑफिस जाएगा। लेकिन क्या इसके नसीब में आराम लिखा भी है? हम चलते हैं अपने अगले मंजर की जानिब। तो क्या देखते हैं कि ये एक बड़े से ऑफिस का कमरा है। ज़मीन पर काले रंग का मखमली कारपेट बिछा हुआ है। दीवारों पर सफ़ेद रंग हुआ है। एक दीवार पर फुल वॉल पर बुक शेल्फ है जो कि किताबों से भरी हुई है। बुक शेल्फ की बिल्कुल सामने वाली दीवार पर कद आवर खिड़की थी जिससे आधे शहर का नज़ारा होता था। सारा इंटीरियर स्याह और सफ़ेद था, जैसे मकीन को ये दो रंग बहुत पसंद है। गर्ज कमरा बहुत कमाल का था और ऐसे में इस कमरे में रखी स्याह मेज़ और कुर्सी, इस पर पुरसोच अंदाज में बैठा वो शख्स भी इसी खूबसूरत मंजर का हिस्सा लग रहा था। बाल जेल की मदद से पीछे किए, उसकी सफ़ेद जिल्द के साथ भूरी आंखें और गाल पर पट्टा एक घड़ा जिसको वो कभी कभी ही शर्फ रौनक बख्शता था क्योंकि वो ज़्यादातर संजीदा रहता है। उसने आज फॉर्मल कपड़े पहने थे। सफ़ेद शर्ट के बाजू कोहनियों तक मोड़े थे। स्याह रंग की पैंट पहने और कोट अपनी कुर्सी के पुष्ट पर डाले चेहरे पर संजीदगी लिए वो अपनी भूरी आंखें किसी गैर मरई नुक्ते पर गाढ़े सोचने में मसरूफ था कि अचानक कोई दरवाजे पर नमूदार हुआ। सफ़ा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो वो उसी तरफ से अजीब नज़रों से उसे देख रहा था। हेलो, क्या तुम फ्री हो? वो अंदर आकर सीधा उसकी कुर्सी के पास आई थी। उस लड़की ने आज भी हमेशा की तरह लॉन्ग शर्ट के साथ लंबे पांचों वाला ट्राउज़र पहन रखा था। स्ट्रेकिंग बाल दोनों कंधों पर आगे किए और हल्के मेकअप के साथ थी। हाशिर ने नामहसूस अंदाज में अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे की। सफ़ा ने मुठ्ठियां भींचकर जब्त करने की कोशिश की, लबों पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट फैलाई। नहीं, मैं बिजी हूँ, तुम्हें कुछ काम था? उसने एक नीले रंग की फाइल खोलकर अपनी नज़रें उस पर जमा दी थी। नहीं यार, मुझे तो सर में दर्द हो रहा था, फिर मैंने सोचा। वो बोले जा रही थी जब किसी की आवाज़ ने उसे रोका था। इन दोनों की नज़रों ने उसका ताक़ुब किया था। वो इंसान सीधा अंदर आकर सोफे पर टांग जमाए बैठा था। सफ़ा, अब दर्द तुम्हारे सर में हो रहा है, इस बेचारे के थोड़ी। सफ़ा के चेहरे पर एकदम इस आने वाले इंसान के लिए नापसंदीदगी ठहरी थी। वो कदम कदम चलती उसकी जानिब आई। ताबिश उसके आने पर सोफे से उठा था। तुम्हारे बीच में बोलने वाली आदत गई नहीं ना अभी तक ताबिश अलवी? सीने पर हाथ धरे और सर नज़रों से उसे देखे गई थी। हाशिर की नज़रें पेंडुलम की तरह कभी सफ़ा पर थीं तो कभी ताबिश पर। वो गाल पर हाथ रख के उसके रोज़ के तमाशे को देख रहा था। ताबिश ने पहले माथे पर गिरते बाल दोनों उंगलियों से पीछे किए, फिर सोचने वाले अंदाज में माथे पर उंगली रखे उसे देखता रहा। फिर थोड़ा सा उसकी तरफ झुका और सरगोशियाना अंदाज में कहा, तुम्हारे मामले में बिल्कुल नहीं डियर सफ़ा। उसके अल्फाजों पर उसके अल्फाज पर जैसे सफ़ा के जिस्म में आग भड़की थी। वो एकदम हाशिर की तरफ मुड़ी थी। हाशिर एकदम सीधा हो बैठा। इसे समझा लो अपनी ज़ुबान में, पढ़ना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। रुख दोबारा ताबिश की तरफ किया और गुस्से से उसे घूरती रही। सफ़ा डार्लिंग, धमकी देनी है तो सीधा मेरे मुंह पर दो, इस बेचारे को क्यों बीच में ला रही? लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैलाई थी। सफ़ा एक नज़र उसे घूरते तन फन करती दरवाज़ा ठा की आवाज़ में बंद करती चली गई थी। कमरे में कुछ देर सन्नाटा छाया रहा था, जैसे हमेशा से खामोशी ने यहाँ अपना बसेरा कर रखा हो। ताबिश उसके जाते ही कुछ पल बाद मुस्कुराया था, हाथ झाड़े और एक बार फिर सोफे पर टांग रखे बैठ गया था, जैसे ये तो उसके लिए रोज़ का मामूल था। हाशिर ने लैपटॉप अपनी तरफ घिसका लिया था। क्यों तंग करते हो उसे? मुझे पसंद है उसे तंग करना, इसीलिए करता हूँ। और फिर इस चीज़ में मज़ा भी तो इतना आता है। एक आंख बंद किए हाशिर को अपना जवाब दिया था। हाशिर ने अब्रोच कर उसे देखा। देख लो, मज़े के चक्कर में तुम्हारा काम ना खराब हो जाए। ताबिश अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ आया था, फिर आंखें छोटी की उसे बावर करवाया। मैं एसपी ताबिश अलवी
किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो मुझे कुछ कर सके। अपनी बात कहता वो हाशिर के सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। हाशिर ने उसे घूर कर देखते अपनी तवज्जो लैपटॉप पर मरकूज कर दी। ये भई ना पंगे किया करो हर किसी से। ताबिश ने वाले अंदाज में उसे देखा था, जैसे जिसको जो करना है कर ले, आई डोंट केयर। ये कराची का काफ़ी छोटा सा इलाका है जिसमें कतार से बने घर। इस इलाके के अंदर काफ़ी तंग गलियां थीं, जैसे 3-4 घरों को छोड़कर फिर कोई तंग सी गली आती थी। गलियां इतनी तंग थीं कि एक बंदा मुश्किल से दाखिल हो सकता था। ऐसे में फजर भी अपने घर की बहुत तंग गली से गुजर रही थी। वो इस तंग और घुटन ज़दा गली से गुजरकर अब अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी ताले में चाबी डाल रही थी। सादा शलवार कमीज पहने, सर पर दुपट्टा जमाए और कंधे पर पर्स लिए वो भी दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने ही वाली थी कि उसे एहसान अंकल की आवाज़ अपने अकब में सुनाई दी थी। कैसी हो बेटी? तुम काफ़ी दिनों से मेरी बेटी को पढ़ाने नहीं आ रही, क्यों? वो एक सफ़ेद दाढ़ी वाले मम्मर से आदमी थे। अंकल उनके काफ़ी पुराने पड़ोसी थे। वो अपनी बीवी और बेटी समेत काफ़ी वक्त से इस इलाके में रिहाइश पजीर थे। वो दरवाजे को आधा बंद किए उनकी तरफ बढ़ी और मुस्कुरा कर अपना सर उनके सामने किया था। अंकल ने उसके सर पर हाथ फेरा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। उनकी दुआ सुनकर फजर दोबारा मुस्कुरा दी थी और हल्की आवाज़ में कहा, आमीन, जज़ाकल्लाह अंकल। और सॉरी, मेरी मसरूफियात काफ़ी बढ़ गई हैं। पिछले कुछ दिनों से तो इसी वजह से मैं नहीं आ पा रही। दो तीन चक्कर लगाऊंगी 2-3 दिन तक चक्कर लगाऊंगी आपकी तरफ। और मैंने सदफ को बताया था कि उसने नहीं बताया आपको? उसने आखिर में हैरानगी वाले अंदाज में उनसे पूछा। पता नहीं बेटा, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी याद नहीं। शायद बताया, मैं ही भूल गया हूँ। क्या करूँ, बूढ़ा जो होता जा रहा हूँ। अंकल ने बेचारगी भरे शक्ल बनाकर उसे देखा तो वो खुलकर मुस्कुरा दी थी। अंकल उससे फिर से दिल ही दिल में दुआएं देने लगे। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। किसी काम से बाहर निकला था तो तुम दिखाई दी। तुम्हारी बातें तो तुमसे बातें करने लग गया। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना अपना और अपने बेटे का भी। वो अंकल को दूर होता देखने लगी। जब काफ़ी दूर चले गए तो वो वापस अपने दरवाजे की तरफ बढ़ी थी और फिर पतली सीढ़ी पर ऊपर की जानिब बढ़ गई थी। फजर अपने 2 कमरे वाले घर में दाखिल हुई तो सामने ही उसका बाप अपने कमरे में नशे की हालत में धुत चारपाई पर पड़ा था। उसने इधर उधर अपनी नजरें घुमाई तो उसे रामिस मिला। वो अपने स्कूल का काम लेकर बैठा हुआ था। माथे पर उसके बाल फैले हुए थे। वो अपनी आंखें किताब पर जमाई हुई थी। ये रामेश और उसका मुश्तरका कमरा था। इस कमरे में एक पलंग के साथ ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था और उससे कुछ फासले पर एक लकड़ी की मेज़ थी जिसके सामने उसका बेटा अपनी कुर्सी पर बैठा स्कूल का काम कर रहा था। फजर उसके पास आई थी। रामेश, आपने खाना खा लिया? रामेश उसे देखकर मुस्कुराया था। जी मामा, खा लिया था, बस उन्होंने नहीं खाया। जब से आए हैं ना तो ऐसे ही बेहोश पड़े। रामेश ने बेहोश पड़े अपने नाना को देखकर अफसोस भरे अंदाज में कहा। फजर ने एक ठंडी सांस भरकर इस चरपाई पर लेटे वजूद को देखा। पता नहीं बाबा ये आदत छोड़ क्यों नहीं देते। उनकी इस हालत की वजह से ही हमारे घर के हालात ठीक नहीं रहते, पर इनको तो जैसे इस बात की परवाह ही नहीं। फजर ने आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को देखा तो वो अफसुर्दगी से बोल दिया, मामा ये कैसी आदत है जो बहुत मुश्किल से छूटती है। आप इसको कितना ही छोड़ने की कोशिश करो ये आपसे नहीं होगा, क्योंकि बाज़ आदतें ऐसी होती थी हैं तो क्योंकि बाज़ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें छोड़कर भी हम नहीं छोड़ सकते। फजर उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। वो 5 साल का बच्चा था और बातें बहुत बड़ों वाली कर रहा था। रात का वक्त था। फजर इस वक्त अपने कमरे में मौजूद ऑफिस का काम कर रही थी और रामिस अपनी मखसूस मेज़ पर बैठे अपने किसी खेल में मगन था। वो लोग खाना खा चुके थे। सिर्फ एक शख्स था जो होश में आते ही बाहर चला गया। फजर ने रामिस को देखा जो सर झुकाए खेल में मशगूल था। रामिस बेटा, सो जाओ। रामिस ने इस बात में सर हिला दिया। जी मामा, बस आया। वो अपना सारा फैला समेटने लगा था। फजर को उसकी सफाई की आदत बहुत अच्छी लगती थी। जब वो अपना खेल खेल चुकता और उकता जब भी वो अपने खेल से उकता जाता या फिर काम ख़त्म कर लेता तो फिर फ़ौरन सामान समेट देता था। फजर ने एक नज़र घड़ी की जानिब देखा। रात के 12 बज रहे थे और अभी तक उसके बाबा घर नहीं आए थे। सुबह वो जब सो रही थी तभी चले गए थे, उसे बताए बगैर। उनकी वैसे भी ज़्यादा बात ना होती थी। इसी पल दरवाजे की आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। उसने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और दरवाजे की जानिब आई थी। दरवाज़ा खोलती उसकी नज़र उनकी जानिब उठी। इस शख्स की आंखें बिल्कुल फजर की तरह थीं। शहजन। इस शख्स के बाल बिखरे थे, आंखों में अलग किस्म का रंग था। वो आदमी फजर को अपने रास्ते से हटाते लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया और सीधा अपने कमरे की जानिब जाने लगा। लेकिन फजर की आवाज़ ने उन्हें रोका। उसकी आवाज़ में हल्की सी नमी थी। बाबा, आपकी सब छोड़ क्यों नहीं देते? आपकी वजह से हम सब परेशान हैं। उस आदमी ने गुस्से से लाल होती आंखें उस पर जमा दी थी। अपने काम से काम रखो। वो अब लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा ठक की आवाज़ के साथ बंद किया था। वो पीछे मुड़ी तो रामिस खड़ा था। मम्मा चलें, सो जाएं, मुझे नींद। मम्मा चलें, सो जाएं, मुझे नींद आ रही है।
उसने सर हिलाया और दरवाज़ा लॉक करने लगी थी। अब वो अपने पलंग पर मौजूद थी और रामिस उसके बराबर में सो रहा था। फजर के हाथ में एक स्याह रंग की डायरी थी जिसमें वो अल्लाह से बातें किया करती थी। अब हुई अब भी वो उस पर झुकी कुछ लिख रही थी। आज फिर बाबा शराब पीकर घर आए। मैंने उनसे वजह पूछी कि उन- मैंने उनसे ये पूछा कि आप ये छोड़ क्यों नहीं देते, तो पता है उन्होंने क्या कहा। फजर की आंख से एक आंसू झलक कर डायरी की स्याह रोशनाई में जज्ब हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि अपने काम से काम रखूं। क्या करूं मैं, प्यारे अल्लाह, आप ही बताएं। मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे तकलीफ होती है उनकी इस बेजा हराम आदत को देखते हुए। उन्हें पता भी है उसकी वजह से मेरी माँ की जान गई, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन ये समझते ही नहीं। बरसों से उनकी आदत चल रही है। इस शराब ने उनके जिस्म को अंदर से खोखला कर दिया है, फिर भी वो नहीं छोड़ते। कुछ ही पल बाद वो अब अपने गुजरे माजी को याद करके रोते हुए डायरी पर कलम घसीटते जा रही थी। सब धुंधला सा होने लगा था। उसके इर्द गिर्द हर चीज़ बदलने लगी थी। वो कहाँ है उसे कुछ याद ना रहा। वो मुकम्मल तौर पर आस पास होते मनाजिर से गाफिल हो चुकी थी। उसी वक्त एक चमक से उभरी थी और फिर पूरे मंजर में जज्ब सी हो गई थी। नया मंजर अपने नया मंजर अपने आप में रंग भरने लगा। उसमें वो दो वजूद थे, एक माँ और दूसरी बेटी। वो 18 साल फजर बड़े जोशो खरोश से अपनी माँ को कुछ बता रही थी और इस वक्त काफ़ी बेहतर भी थी आज के लिहाज से। ना चेहरे पर हल्के थे, ना किसी परेशानी का शिकार थी। जिंदगी में सुकून ही सुकून था। आज अम्मी आज कॉलेज का दिन अम्मी आज का दिन कॉलेज में बहुत अच्छा गुजरा। उसके अंग अंग से खुशी की लहर फूट रही थी। बल्कि अच्छा एक बहुत नामानूस लफ्ज़ है। आप उसके बल्कि अच्छा एक बहुत नामानूस सा लफ्ज़ है सबके सामने। उसकी माँ करीब होकर बैठी। अब ऐसा भी क्या हो गया था? वो प्यार भरी नज़रों से बेटी का हाथ थामते कहने लगी, एक तो मेरा पेपर सबसे अच्छा हुआ और फिर वहाँ बारिश भी हो गई। फजर की आंखों में खुशी देखने के काबिल थी, पर खंदा ने नज़रें चुरा ली। मवादा कहीं नज़र न लग जाए उनकी जान सी बेटी को। फजर फजर अभी तक इनसे हमगलाम रही। आपको तो मालूम है कि मुझे बारिश कितनी पसंद है। मेरा शिद्दत से दिल करता है कि सारा दिन बस बारिश ही हो। फरखंदा हंसी। एकदम फजर को कुछ याद आया तो वो सर पर हाथ मारती उठी। उफ, मैं आपके लिए कुछ लाई थी, देना ही भूल गई। वो कहती अलमारी की जाने बढ़ी और उसके अंदर से थैली निकाल ली थी। वो मुड़ी तो फरखंदा को थैली में बड़ी चीज़ नजर आ गई। बेख्तियार उन्होंने नफ़ी में सर हिला दिया था। इसकी क्या ज़रूरत थी बेटा? फजर सामने बैठी और फिर उनकी हथेली में गुलाब के कंगन पहना दिए थे। मुझे बस अच्छे लगे तो ले ली। वो दोनों माँ बेटी बातों में मगन थी। तभी कोई तेज कदमों से चलता हुआ इस कमरे में दाखिल हुआ। दोनों ने सर उठाकर एक शख्स की जानिब देखा और फिर सांस लेना भूल गई थी। अपने आसपास दोनों को काफूर की बू महसूस होने लगी। उस शख्स ने झुककर फजर को बालों से जकड़ा। तकलीफ की शदीद लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। वो समझने से कासिर थी इसके साथ हुआ क्या है। वो कराही चीखें, इन चीखों में फरखंदा की चीखें भी शामिल थीं। उसके बाप ने उसे जोरदार थप्पड़ रसीद किया। चुपचाप चलो मेरे साथ। वो आदमी ज़बरदस्ती फजर को घसीटकर कमरे से बाहर ले जाने लगा। फरहंदा बीच में आ गई थी। कहाँ ले जा रहे हो इसे? वो जोर से बोली तो जुल्फी ने उल्टे हाथ का थप्पड़ उन्हें रसीद किया था, जिसकी वजह से वो गिरते गिरते बची थी। वो आदमी उन पर धाड़े, मेरे मामलात में मुदाखलत की तो तेरी ये टांगें काट दूंगा। फजर के बाल अब तक उनकी मुट्ठी में थे। कई बार उसने छुड़वाने की कोशिश की मगर पकड़ सख्त रही थी। उसने एक लंबी सांस खींची। मुश्किल था माजी को याद करना। एक अलग किस्म की तकलीफ से दो चार होना मुश्किल होता है इनके लिए जिन पर वो गुजरे। उसके बाप ने जोरदार अंदाज में उसे एक आदमी के सामने ला पटका। वो उनके कदमों में गिरी आंसू बहाने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जुल्फी ये सब कुछ करेगा। हाँ, इसे अपने बाप के मुतल्लिक सब मालूम था। कभी भी ढका छुपा तो कुछ नहीं था, मगर कुछ था जिसकी वजह से दिल में शदीद तकलीफ पैदा हुई थी। उसने शिकवा गुनाह निगाहें उठाकर अपने बाप को देखा था। क्या बाप ऐसे होते हैं? बाप तो अपनी औलाद के लिए चाँव का समा होते, मगर उसका बाप क्या निकला था? पैसों की लालच में अपनी सगी औलाद बेचने वाला। आंसू थे कि रुकने का नाम ही ना ले रही थी। जुल्फ़िकार, मत करें ये, आपको अल्लाह का वास्ता है। फरखंदा ने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़े। फजर को भी घुट फजर भी घुट घुट कर रो रही थी। जुल्फ़ी ने फरखंदा को फिर जोरदार झटका दिया था। वो ज़मीन पर जा गिरी। गिरने से सर फट चुका था। चारों ओर मिट्टी वाले फर्श पर खून बहने लगा, गाढ़ा खून। फजर ने हाथ उठाकर उन्हें आवाज़ दी, मगर वो उसकी पुकार नहीं सुन सकी थी, क्योंकि वो दुनिया माफिया से बेहोश हो चुकी थी। फजर चीखने लगी, मगर जुल्फ़ी बगैर कोई तवज्जो दिए सामने वाले से कहने लगा, पूरे 50 लाख लूँगा, इससे 1 रुपया कम नहीं। हाथ के पुछ से बहते आंसू साफ किए थे। लबों से सिसकी उभरी थी। उसने बेसाख्ता हाथ मुंह पर रख लिया था, इस डर से कि रामिस न जाग जाए। वो दोबारा लिखने झुकी थी। इस आदमी ने इस बात में सर को जुम्बिश दी। पैंट की जेब से कई सारे नोटों की गड्डी निकालकर जुल्फ़ी की तरफ उछाल दिए थे। कुछ गड्डियाँ गिर चुकी थीं, जिन्हें उठाने की गर्ज से जुल्फ़ी झुका था। एक नज़र फजर पर डाली, फिर नहमत से उसकी हालत पर हंसा था।
ज़मीन पर फैली गड्डियाँ उठाकर उनकी खुशबू सूंघी थी। फिर दिलफरीब मुस्कुराहट से इस आदमी से कहा, अब यहाँ बैठे मेरा मुंह क्या देख अब यहाँ बैठ अब यहाँ बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ इसे और दफा हो। वो नोटों की गड्डियाँ पकड़े यहाँ से जाने लगा। बगैर फरखंदा के बेहोश वजूद को देखे उसे जब्त करना महाल हो रहा था। आंसू की लड़ियां बहती जा रही थी। आंखें कुछ देर के लिए बंद की, गीली सांस बाहर को खारिज की, फिर एक बार फिर लिखना शुरू हो गई। ये थी मेरी जिंदगी की तकलीफ दे दास्तान, वो दास्तान जिसे मैं जब भी याद करती हूँ जिसम में नई सिरे से तकलीफ पैदा होती। मैं चाहूँ तब भी इसे भुला नहीं पा रही। शायद ये मेरी आजमाइश है जिसे अब मैंने मौत तक बर्दाश्त करना है। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला अब मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये लिखते ही उसने एक झटके से डायरी बंद की और सोने के लिए लेट गई थी। उसके लेटते ही रामिस ने आंखें खोली और बगैर पलके झपके माँ को देखे क्या। उसने फजर की सिसकियाँ सुन ली थी। जब से होश संभाला था वो रोज रात को अपनी माँ की सिसकियाँ ही सुनता आ रहा था। उसने अपना हाथ फजर के गाल पर रखा तो उसने आंखें खोल दी थी। वो यकटक में रोई 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 आंखों से रामिस को देखने लगी थी। उसके गाल से एक बहता हुआ आंसू रामिस ने अपनी हथेली से साफ किया था। फजर उसकी इस हालत पर नम आंखों से मुस्कुरा दी थी। फिर दोनों बाहें फैलाकर रामिस को पास आने का इशारा किया था। रामिस ने फौरन उस पर अमल किया। बेटे के पास आते ही फजर के वजूद में गोया यकूना सकून फैल गया था। एक वो ही था जो उससे मुखलिस था। उसी के होने से उसकी ज़िंदगी में बहार थी। अगर उसका बेटा ना होता तो वो कब की ज़िंदगी से हार जाती। कुछ पल तो ऐसे ही गुजर गए। रामिस ने फजर के सीने से सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। मामा, मैं आपका सुपर हीरो हूँ ना। मैं हर जगह आपको प्रोटेक्ट करूंगा। फजर को उसके लफ्ज़ों पर बेख्तियार प्यार आया था। उसने रामिस के बालों को चूमा था और फिर वो दोनों नींद की वादियों में गुम हो गए थे। हम इस 2 मंजिला इमारत की बलाई मंजिल पर बने आखिरी कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि इस कमरे का दरवाज़ा बंद होने में 1 इंच की दूरी पर है। इस कमरे में चारों ओर नजरें दौड़ाएं तो इसकी हर दीवार पर सफ़ा की तस्वीर नस्ब थी। किसी तस्वीर में वो मुस्कुरा रही थी तो किसी में बस संजीदा खड़ी थी। इस कमरे में एक किंग साइज बेड और इसकी 2 छोटी साइड टेबल्स और एक सिंगार मेज था और एक छोटी सी बालकनी थी जिससे बाहर का खूबसूरत नज़ारा पेश होता था। इसके कमरे की दीवारों का रंग सुरमई था और इसी इम्तिजाज का उसने फर्नीचर रखा हुआ था। इस कमरे की खिड़कियां ना ज़्यादा बड़ी थीं ना छोटी। सफ़ा इस वक्त बालकनी में उसकी रेलिंग से टेक लगाए खड़ी थी। रोशनी बस कमरे तक ही महदूद थी। कुछ बुलंदो बाला इमारतें चांद की रोशनी में गर्दनें झुकाए इसे देखने में मगन थी। उसने नाइट सूट पहन रखा था। शर्ट की आस्तीनें आधी थी जिससे उसके सफ़ेद बाजू झलक रहे थे। उसके हाथ में एक फ्रेम था जिसमें नजर आते मुस्कुराते इंसान पर उसकी नजरें थीं जिसे वो मुसलसल बस खामोश नज़रों से देखे जा रही थी। आंखों में कई सारे शिकवे थे मगर लबों से जुदा होने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने इस तस्वीर को ऊंचा करके चेहरे के सामने किया। चांद की रोशनी में चेहरे के तासुरात वाज़ेह हुए। आंखों में गहरी सर्द मेहरी थी। ऐसा लग रहा था कि अभी किसी का कत्ल कर दे। लबों पर हल्की मुस्कुराहट पैदा होकर मासूम हुई। आंखों के तासुरात भी बदले। फिर एकदम बालकनी के चलते तस्वीर नीचे की जानिब फेंक दी। तस्वीर पथरीली सड़क पर गिरकर कांच के टुकड़ों में तकसीम हो गई थी। इस इंसान का चेहरा एकदम से मिट गया। उसकी नज़रें इन टूटे हुए कांच पर जम गई थी। वो भी अंदर से इस टूटे कांच की तरह ही थी जो अगर किसी ने उसे छुआ तो वो इंसान खुद पाश पाश हो जाए। उसने बस ऊपर से खुद पर सख्ती का लिबादा ओढ़े हुआ था। उसने बस खुद पर सख्ती सख्ती का लिबादा ओढ़ रखा था। वो कदम पीछे की जानिब लेने लगी, फिर अचानक से बालकनी का दरवाज़ा ठाक की आवाज़ में बंद करते कमरे में गायब हो गई थी। शाम का वक्त था। हाशिर इस वक्त यतीम खाने की इमारत के सामने खड़ा था। उसके हाथ में कुछ फलों के थैले थे। उसने अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए तो अंदर कुछ बच्चे उसी के इंतजार में थे। उस पर उनकी नज़र पड़ते ही एक अलग किस्म का सकून बरपा हुआ था। वैसे मंजर में उसके वालिदैन खड़े मुस्कुरा रहे थे। बच्चे उसके हाथ से फल लेकर मज़े से खा रहे थे। वो बच्चों की उंगली थामे बाग में आया था। यहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। बच्चे बच्चे अब उसे दरमियान में खड़ा किए उसके इर्द गिर्द दायरा बनाए कोई गीत गाने में मसरूफ थे। बच्चे अब उसे दरमियान में खड़ा किए उसके इर्द गिर्द दायरा बनाए कोई गीत गाने में मसरूफ थी। वो हंसते उन्हें देखे गया। वो गाड़ी में बैठने के बाद बच्चों को हाथ हिला रहा था। उसकी राह अब कहीं और की थी। फजर अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी चांदनी में डूबे आसमान को तके जा रही थी। रात की रानी ने हर सू तन्हाई फैला रखी थी और फजर किसी गहरी सोच में गुम थी। वो खुद को किसी और ही मंजर में देख रही थी जहां रामिस अपने छोटे छोटे कदम उठाता उसके पास आया था और उसके गालों पर बहते आंसू पोंछने लगा था। मामा, आप ना रोएं, रामिस को अच्छा नहीं लगता। वो रोते हुए मुस्कुरा दी और नफ़ी में सर हिलाने लगी। फजर हाल में वापस आई। उसने पीछे मुड़कर रामिस को देखा तो वो सो रहा था। वो मुस्कुराते उसकी जानिब आई थी।
धीरे धीरे उसके सुनहरे बाल सहलाती रही और कई बार की सोची हुई बातें दोबारा सोचती रही। और उसका बेटा ना होता तो आज वो इतनी मजबूत ना होती। फजर ने उसके गिर चादर तानी और उसके बराबर में सो गई थी। ताबिश अपने ऑफिस में मौजूद था। उसकी हेजल आंखों में एक खुशी झलक रही थी। पुलिस यूनिफॉर्म जेब तन किया था। हाथ में अरबाज सिल्वी की तस्वीर थी जिसे देखते आज की रुदास सुना रहा था। आपको मालूम है बाबा, आज आपके बेटे ने वो कर दिखाया जिसका जिसका आपसे वादा किया था। आवाज़ में हल्की सी नमी शामिल थी, मगर वो उसे बुलाए बस बोले गया था। आज मैंने एक ऐसे मुस्तहक शख्स की मदद की जो लोगों के दर खटखटा कर थक गया था। वो नाउमीद हो चुका था, मगर मैंने उसे उम्मीद दिलाई कि एक ना एक दिन उसे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और आज देखिए उसे इंसाफ मिल गया है। तस्वीर पर हाथ फेरा, आंखों में आंसू चमके थे। फिर भी अपनी बात जारी रखी। मैंने उसकी मदद करके साबित कर दिया कि आज भी ऐसे पुलिस अफसर मौजूद हैं जो इंसाफ का साथ देते हैं, ना कि रिश्वतखोरी करते हैं। मैंने उस शख्स की आंखों में एक अलग किस्म की खुशी देखी थी इस वक्त जब वो खुशी से मेरे गले लगा था। तस्वीर टेबल पर जमाई और खुद कमरे में टहलने लगा था। मुझे ज़िंदगी में कभी किसी ने आपके अलावा इस तरह गले से नहीं लगाया जैसा उस शख्स ने लगाया था। मुझे एक पल को तो आपकी याद आ गई। आंख से गिरता आंसू दाढ़ी में जज्ब हुआ था। वो खिड़की की तरफ आया और आसमान पर निगाह जमाकर अपने बाबा से मुखातिब हुआ। देख लें बाबा, मैंने अपना वादा पूरा किया। सर झुड़कते वो हंसा था, मगर इस हंसी में तकलीफ खुली हुई थी। वो अब अपने सामान समेटने जाने वो अब अपना सामान समेटे जाने की तैयारी कर रहा था। आज की ड्यूटी तमाम हो चुकी थी। फजर तेज तेज कदमों के साथ मोबाइल पर्स में डालते ऑफिस की इमारत में दाखिल हुई थी। शहर में मामूल से हटकर आज काफ़ी ज़्यादा रश था, जिसकी वजह से वो देर से पहुंची थी। अल्लाह, आज तो बहुत लेट हो गई। एक तो ये कराची की ट्रैफिक घिना टाइम पर पहुंचने ही नहीं देती। वो मरजंडा रंग की शलवार कमीज पहने, सर पर दुपट्टा जमाए, कंधे पर पर्स लटकाए बड़बड़ाते हुए लिफ्ट में दाखिल हुई थी। अभी उसने लिफ्ट का बटन नहीं दबाया था। उसी पल कोई स्याह रंग के पैंट शर्ट पहने, हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़े, चुलचुलाए चेहरे के साथ किसी को इज्जत में मैसेज करता अंदर की जानिब आया था। मोबाइल पर ध्यान होने की वजह से उस शख्स ने आसपास ना देखा और लिफ्ट का बटन दबा दिया। तभी हाशिर को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने पीछे मुड़कर देखा। वो हैरान रह गया। उसके सामने फजर खड़ी थी, उसे ही देख रही थी। उसे लग रहा था कि उसे आज उसी ने देर कर दी, लेकिन फजर ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम सर। फजर ने उसे खुद को देखता पाकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप भी ट्रैफिक में फंसी थी? उसका सवाल सुने फजर ने इस बात में सर हिला दिया। जी सर, काफ़ी देर से। तकरीबन किसी वक्त आप तकरीबन किस वक्त आप निकली थी अपने घर से? हाशिर ने अपना रुख उसकी जानिब कर दिया। लिफ्ट बहुत सुस्त रफ्तारी से ऊपर जा रही थी, या शायद उसे महसूस हो रहा था। मैं पौने 7 बजे निकली थी घर से। उसने एक नज़र अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखा और अब 8:30 के करीब पहुंची। अच्छा ठीक है। हाशिर ने सर हिलाया और फिर वापस उसे मुखातिब किया। लेकिन कल से आप थोड़ा जल्दी निकला करें ताकि ऑफिस वक्त पर पहुंच सके। फजर ने उसकी बात सुने इस बात में सर हिला दिया और दिल ही दिल में बड़बड़ाने लगी। खुद तो जैसे ये 6 बजे ही आकर बैठ जाते हैं। और आपकी तबीयत कैसी है? उसे हाशिर की आवाज़ ने ख्यालों से बाहर निकाला। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ, उसने रस्मन मुस्कुराकर जवाब दिया। मुस्कुराने से उसकी दाएं गाल पर एक गड्ढा बना था। लिफ्ट अपनी जगह पर पहुंच चुकी थी, लेकिन इन दोनों को महसूस नहीं हो सका था। हाशिर को तब ख्याल आया जब लिफ्ट के दरवाजे खुले। वो थोड़ा पीछे हुआ और फजर को हाथ से आगे बढ़ने का इशारा किया। फजर धीमे अंदाज में मुस्कुराते सर झुकाए लिफ्ट से निकली थी। उसके पीछे वो भी धीमी मुस्कुराहट लबों पर सजाए, सीने पर बाजू बांधे निकला। उसका रुख अपने कमरे की जानिब था। हाशिर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो नज़र सीधी ताबिश पर पड़ी, जो उसकी कुर्सी पर बैठा गेम खेलने में मसरूफ था। फिर उसकी मौजूदगी को महसूस करते उसे देखने लगा। उसने सुरमई आधी आस्तीन वाली शर्ट, जिससे उसके कसरती बाजू झलक रहे थे, के साथ नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। हाथ में घड़ी पहने मोबाइल टेबल पर रखा और वो गुस्से से उसकी जानिब बढ़ा था जब अंदर आ चुका था। हाँ जी बताएं, फिर किधर थे आप? उसने अब्रो उठाकर उसने अब्रो झुकाकर और कमर पर हाथ जमाए उसे देखा था। रास्ते में था यार, हाशिर ने बेजारी से कहा। एक तो कराची की ट्रैफिक, ऊपर से सुबह सुबह ताबिश की शक्ल में मिली हुई सज़ा। दोनों ने सर घुमा दिया था। ताबिश ने सर से लेकर पाँव तक उसे देखा, फिर बोला, और ये तुम मुझे पिछले आधे घंटे से कह रहे हो। मेरे भाई, तुम कल से अपने टाइम पर ही आना। हाशिर ने उसे घूरा था। क्योंकि जब तुम जल्दी आते हो तो मेरा सर खाते हो। ताबिश उसकी बात सुनने हैरान हुआ। मैं इसीलिए ऐसा करता हूँ क्योंकि तुम्हें भी मालूम हो कि ये सब सुनना आसान नहीं। ताबिश अपनी मखसूस जगह पर बैठा और हाशिर उसे घूरता जगह पर बैठा था। तभी सफ़ा दरवाज़ा बजाते अंदर आई थी। उसने आज सफ़ेद रंग की लॉन्ग शर्ट और उसी रंग का ट्राउज़र पहन रखा था और पाँव में मुकीद स्याह
اور پاؤں میں مکی سیاہ ہلز کے ساتھ وہ ٹک ٹک کرتی اس کی جانب آئی تھی۔ اس نے ایک نظر تابش کو دیکھا جو اسے ہی مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتے حاشر کی جانب بڑھی اور اس کے انتہائی قریب کھڑی ہوئی تھی، اتنی کہ 1 انچ کا بھی فاصلہ ختم ہو گیا۔ تابش کی سنجیدہ نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ کیسے ہو حاشر؟ اس نے تھوڑا سا مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ حاشر نے حسب عادت کرسی کو پیچھے دھکیلا۔ صفا ہونٹ بھیج کر رہ گئی تھی۔ اس نے زبردستی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ میں ٹھیک ہوں۔ کوئی کام تھا صفا؟ اس نے اپنے سامنے پڑے لیپ ٹاپ کو کھولا تھا۔ صفا اب دوسری جانب سے مڑ کر تابش کے برابر والی کرسی پر براجمان ہو گئی تھی۔ خیریت ہے صفا ڈیئر، آج چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ تابش نے تھوڑا سا جھک کر اسے پوچھا تھا۔ حاشر نے بخوبی اس کی آواز سن لی تھی اور اس نے بھی صفا کی جانب دیکھا جو تابش کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب میں تم سے بات نہ کروں تابش الوی تو مجھ سے بات بھی مت کرنے کی کوشش کیا کر، یہی تمہارے لیے بہتر۔ اس نے مسکرا کر ٹھنڈے لہجے میں تابش کو باور کروا دیا تو تابش اس کی بات سنتے ہنس دیا تھا۔ کیا کروں صفا، میں نے اس پاگل کو کافی سمجھایا مگر دل ہے کہ مانتا نہیں۔ تابش نے فوراً جواب دیا جس سے صفا کو کافی غصہ آیا تھا، لیکن ایک نظر اس نے تابش کو دیکھا تو خود کو بامشکل روک لیا۔ لیکن آخر کب تک؟ زبان پر مچلتے الفاظ نے باہر کا راستہ اختیار کر ہی لیا تھا۔ سمجھا لو اپنے دل کو پھر، کیونکہ یہ تمہیں کافی جگہ بے عزت کروائے گا۔ تابش نے اس کی بات سنتے ہنس کر سر جھٹکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا حاشر بیچ میں بول پڑا۔ صفا تم کیوں آئی تھی؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ صفا نے اپنی نظروں کا رخ اس جانب کیا تھا۔ بشیر انٹرپرائز کا فون آیا تھا، انہوں نے میٹنگ کا ٹائم پوچھا ہے، اس نے حاشر کو دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تبھی تابش کے موبائل کی آواز گونجی تھی۔ اس نے ایک نظر حاشر اور صفا کو دیکھا اور پھر موبائل کان سے لگا لیا تھا۔ ہاں حسن، کیا نیا کیس آیا ہے؟ ٹھیک ہے میں بس آتا ہوں۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر انہیں دیکھا۔ سوری گائز، مجھے جانا ہوگا، ایک ارجنٹ کیس ملا ہے۔ حاشر نے اس بات میں سر ہلا دیا جبکہ صفا نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ چلا گیا تو پھر صفا حاشر سے مخاطب ہوئی۔ تابش کو سمجھا لو حاشر، وہ مجھ سے زیادہ مخاطب نہ ہوا کرے۔ حاشر نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ مگر کیوں؟ اسے صفا کا لہجہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ تم نے اسے زیادہ ہی سر چڑھا رکھا ہے، پورے آفس میں گھومتا ہے وہ، امپلائی کے ساتھ اتنا فری ہوتا ہے جیسے وہ اس کے دور کے رشتے دار، اور پھر سارے آفس کا ماحول خراب کر دیا ہے اس نے۔ صفا نے اس کے ٹیبل سے پیپر کلپ اٹھایا اور بغور دیکھنے لگی۔ وہ ایسا ہی ہے، یہ اس کی نیچر ہے، وہ آفس کا ماحول خراب نہیں کرتا بلکہ اس نے ہی ماحول فرینڈلی رکھا ہوا ہے۔ امپلائیز بغیر ڈرے اس سے بات کر لیتے ہیں۔ کچھ پل کو خاموشی سے صفا کو پیپر کلپ سے کھیلتے دیکھنے لگا۔ اور میرا خیال ہے کہ بات آتی ہے آفس کے ماحول کی تو وہ میرا درد سر ہے۔ تمہیں اس سے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں، تمہیں بس اپنے کام کو دیکھنا ہے۔ آخری بار جو فائل تم نے بھیجی تھی اس میں تھوڑی غلطیاں تھیں، اس میں ہر صفحے پر کمپنی کا نام غلط ہے، اسے درست کر کے مجھے دوبارہ بھیجو۔ حاشر نے ٹیبل پر ہاتھ جماتے کہا۔ صفا کی آنکھوں میں سر سا تصور ابھرا تھا اور پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حاشر نے انٹرکام اٹھایا اور کان سے لگا لیا تھا۔ پلیز میرے کمرے میں فجر کو بھجوائیں، ایک کام ہے۔ کچھ ہی دیر میں فجر آ گئی تھی۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ اس نے سوالی انداز میں پوچھا۔ جی ہاں فجر، پلیز سیٹ پر بیٹھیے۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر فجر کو کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ صفا نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا جو صرف اس وقت فجر کی وجہ سے آئی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں کچھ اندر ہی اندر برا سا محسوس ہوا تھا، لیکن اپنے چہرے کے تاثرات ویسے ہی سرد رکھے تھے۔ السلام علیکم میم۔ فجر نے کرسی پر بیٹھتے اپنے برابر میں بیٹھی صفا کو سلام کیا تھا۔ صفا نے اپنے اصلی انداز میں سر کے اشارے سے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ فجر، آپ کو بشیر انٹرپرائز کا معلوم ہے؟ حاشر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ کر کہا۔ جی سر، وہی جو پچھلے ہفتے آئے تھے؟ اس نے پوچھا تو حاشر نے حامی بھری۔ صفا اس دوران چپ بیٹھی رہی۔ آپ کو ان کے ساتھ میٹنگ کا ٹائم سیٹ کرنا ہے، جو بھی مناسب لگے آپ کو۔ فجر نے اس کی بات سنے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ صفا کے تاثرات تبدیل ہوئے تھے۔ پیپر کلپ ٹیبل پر جھٹکے سے رکھا اپنی جگہ سے اٹھی اور ہیل کے ٹک ٹک کے ساتھ کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے دھڑام سے بند کرتی باہر چلی گئی۔ اسی لمحے حاشر اور فجر کی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ سر، کوئی مسئلہ ہے میڈم کے ساتھ؟ سر، کوئی مسئلہ ہے صفا میڈم کو مجھ سے؟ وہ بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حاشر نے بھی اسی جانب دیکھتے کہا۔ صفا کو کسی سے مسئلہ نہیں ہے مس فجر۔ حاشر کے سوال پر وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی اور پھر اس کے لب منہ پہ مسکراہٹ میں ڈھلی۔ فجر کو یوں مسکراتا دیکھ کر حاشر کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ ہم منظر کی دوسری جانب بڑھیں تو تابش اپنے آفس کی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے سیاہ رنگ کی فائل لیے ایک لڑکا کھڑا تھا جس کی عمر 25 کے قریب تر تھی۔ سر، یہ اسمگلنگ کا کیس ہے۔ حسن نے اس کی جانب فائل بڑھائی تو اس نے وہ پکڑ لی تھی اور اس کے اوراق پلٹنے لگا۔
किस तरह की स्मगलिंग का केस है? उसने सवालिया नज़रों से अपने सामने खड़े हसन से पूछा था। सर, ह्यूमन स्मगलिंग का, जो कि अब पाकिस्तान में भी आम है। ताबिश ने इस बात में सर हिला दिया। फिर हसन ने दोबारा कहा, वो पाकिस्तान जिसके लिए कायद ने एक अच्छा ख्वाब देखा था, वो जिन हत्याकारियों में सबसे आम पाया जाता है। सब लोग हर काम सर लोग हर वो काम कर रहे हैं जिसे हमारे अल्लाह ताला ने मना किया था। ताबिश ने उसे देखा जो सामने लगी कायद-ए-आज़म की तस्वीर को देख के बोल रहा था। इस सब में हमारी गलती भी है हसन। कैसे सर? उसे ताबिश की बात समझ में ना आई थी। अगर हम खुद को नहीं बदलेंगे तो ज़माने में कोई खुद को नहीं बदलेगा। हमें सबसे पहले खुद से शुरुआत करनी है, तभी तो सब ठीक होगा। और अगर इसके बाद भी ठीक ना हो सका तो? ताबिश ने अपनी नज़रें फाइल पर जमा दी। तो फिर हमें इस मामले को अल्लाह पर छोड़ देना है और फिर अपनी नज़रसानी करनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुंतखब की है, जैसे कि ये केस। उसने अब्रो से फाइल की जानिब इशारा किया था। तो क्या करना है सर हमने? हसन ने ताबिश की आंखों में देखा तो इसमें एक खास चमक थी। हम फौरी तौर पर पुलिस नफरी को तैयार करेंगे, अभी और इसी वक्त उनके अड्डे पर धावा बोलने वाले हैं। हसन ने उसकी बात सुनी और यहाँ से चला गया था। ताबिश वापस इस फाइल को हाथ में पकड़े किसी गहरी सोच में गुम हो गया था। यह मंजर कुछ साल पहले का है। ताबिश अपनी माँ के साथ टेबल पर खाने के लवाजमात सजा रहा था। वो गाहे बगाहे अरबाज अल्वी को भी देख रहा था जो किसी फाइल में मुनहमिक दिखाई दे रहे थे। वो इतने उलझे हुए थे कि उन्हें किसी काम का होश भी नहीं था। ताबिश बाबा को खाने के लिए बुला कर लाओ, उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है ना। इसी केस के पीछे पड़ गए। उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उनकी जानिब देखा और अरबाज अलवी की जानिब बढ़ गया था। इस वक्त ताबिश की उम्र 9 साल थी। बाबा, बाबा। ताबिश उनके पास कुर्सी पर बैठा तो उन्होंने उसे देखा। क्या बात है बेटे? अरबाज अलवी ने पूछा तो उसने कहा, अम्मा आपको बुला रही हैं खाने के लिए। वो कह रही हैं कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना पिया है इस केस के चक्कर में। बाबा, अपनी अम्मा से बेटा अपनी अम्मा से कहो कि मैं खा लूँगा, आप खा लो। उनके कहने पर भी ताबिश अपनी जगह से ना खड़ा हुआ था। उन्होंने उसे मुखातिब करके पूछा, क्या देख रहे हो बेटा? बाबा, मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी देर से इस फाइल को देख रहे हैं। ना आप खाना खा रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं। ऐसा क्यों? उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए थे। बेटा, ये केस ही बहुत हसास नौयत का है। मुझे मेरे सारे काम पसे पुश रखने पड़े हैं। ताबिश को उनकी बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन फिर भी पूछ बैठा, क्यों बाबा? अरबाज ने फाइल की जानिब देखते एक सरदा भरी थी। इस केस के साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा है। वक्त अगर मैंने इसे छोड़कर अपने बाकी काम किए तो कुछ लोग पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये कहते वो कुछ पल को रुके थे, फिर अपनी बात कहे इस छोटे बच्चे से, ताबिश, तुम पर अगर कभी ऐसा वक्त आए तुमने चुनाव करना हो तो सबसे पहले पाकिस्तान को चुनना, क्योंकि हम जिस पाकिस्तान में बैठे हैं यह हमें बहुत मुश्किलों से मिला है। बहुत से लोगों ने इस मुल्क के लिए जान दी है और सबसे और इन सब में तुम्हारे दादा जान का भी शुमार होता है और इंशाल्लाह मेरा भी होगा। और बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम भी कभी ना कतराना इस मुल्क के लिए शहीद होने से। इस वक्त उसे ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज जब वो यहाँ पुलिस स्टेशन में मौजूद था तब उसे अपने बाप की हर बात समझ में आ गई थी। वो हर वो हाल में आया तो उसने टेबल पर पड़ी अपने बाप की तस्वीर को उठा लिया था और उस पर उंगली फेरते कहने लगा, बाबा, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। अब मुझे एहसास हुआ है कि आपने तब इस वक्त अपने सारे काम पसे पश रखे हुए थे और ये ऐसा क्यों किया था। इन लोगों ने अपने कदम इस 2 मंजिला इमारत में जैसे ही धरे, ठीक उसी वक्त उसके नसों में खून की बू घुस गई थी। यहाँ कोयलों के जलने की बदबू भी थी। बेख्तियार ताबिश ने अपनी कलाई इनाक पर रखी थी। इसने अपने पीछे से आते असद, दाऊद और हसन को अंदर की जानिब कदम बढ़ाने का इशारा किया तो वो सब बंदूक ताने अंदर की जानिब बढ़े। कुछ ही पल में वो एक कमरे के सामने खड़े थे। इस कमरे से सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। कमरे की दीवारों पर कोयले की मदद से कुछ लिखा हुआ था, लेकिन अंधेरे के बायस कुछ दिखाई ना दिया था। हसन, तुम मेरे साथ आओ और तुम दोनों इस पूरे अड्डे को देखाओ, जो भी मिले पकड़ लो। उसकी बात सुने वो दोनों फरार चले गए थे, जबकि वो और हसन अब कमरे में आए थे। कमरे में हर उम्र की लड़कियां और औरतें मौजूद थीं। सर, इनको खौफ खुदा नहीं आता? हसन ने अफसोस से इन सबको देखते हुए कहा, जो सर झुकाए आहो बका कर रही थी। अगर इन्हें खौफ खुदा होता तो वो आज यहाँ ना होते। हसन ने ताबिश को देखते इस बात में सर हिला दिया। उसकी बात में सच्चाई थी। ताबिश ने मौजूद इन सब पर एक नज़र दौड़ाई थी, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर ठहर गई थी। वो सफ़ेद रंग की यूनिफॉर्म में मौजूद थी, बाल बिखरे थे और उसके सफ़ेद यूनिफॉर्म में जगह जगह खून के धब्बे थे, जैसे उसे बुरी तरह से पीटा गया। उसने बेख्तियार अपने कदम उस जानिब बढ़ा दिए थे और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया था। उस लड़की को किसी के मौजूदगी का एहसास जागा तो उसने देखा
उसके सामने एक शख्स बैठा हुआ था। उसने बेख्तियार अपने गिर्द बाजू फैला दिए थे। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे मत लेकर जाएं, मैं मर जाऊंगी, मुझे मत मारें आप लोग। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग मुझे यहाँ ले आए हैं? मेरी अम्मी अब्बू परेशान हो रहे होंगे। वो लड़की आखिर में चीख रही थी। ताबिश ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर उसे रोका। आप गलत समझ रही हैं, हम आपको बचाने आए हैं। ये कहते ही उसने हसन की जानिब देखा। हसन इसका देखना समझ गया था और अब वो कमरे से बाहर जा रहा था। ताबिश ने अपना रुख वापस इस लड़की की जानिब किया जो उसे ही हैरानी से देखे जा रही थी, जैसे उसकी बात समझ ना सकी। आप परेशान ना हो, हम आपको यहाँ से लेने आए हैं। तभी कमरे के बाहर से शोर सुनाई दिया था। ताबिश ने अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। वो बाहर आए तो हसन और उसके दो साथी एक आदमी को पकड़े बैठे थे। सर, ये काफ़ी सारे लोग थे, इनमें से आधे लोग बाकी लड़कियों को लेकर चले गए हैं। उसने अपने साथी की बात सुनकर आंखें मीच ली थी। इसे अफसोस हुआ था अपने देर से आने पर। और सर, बाकी हमारे आने का सुनकर भाग गए थे। ये भी भागने वाला था, लेकिन दाऊद ने बर वक्त इसे देख लिया और अब ये आपके सामने है। ठीक है, तुम ऐसा करो कि इसे थाने ले चलो, और हसन, तुम इन सब लड़कियों को थाने पहुंचाकर उनके घर वालों को फ़ोन करके बुलाओ। हसन और दाऊद उसकी बात पर फ़ौरन अमल करने चल दिए थे और असद वहीं खड़ा रहा। ताबिश अभी आगे बढ़ा ही था कि उसे कमरे के बराबर वाली दीवार पर कुछ स्याह रोशनाई में लिखा नजर आया था। उसने पीछे मुड़कर असद को देखा और कहा, तुम इसे ले जाओ, मैं आता हूँ। वो उसकी बात सुनकर आदमी को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। ताबिश ने अपने कदम इस दीवार की जानिब किए थे। वो जैसे करीब आया तो स्याह रोशनाई में फॉक्सी द फॉक्स लिखा हुआ था। उसे ताज्जुब हुआ, क्योंकि ज़िंदगी में पहली मर्तबा उसने ये नाम सुना और शायद देखा था। वो सर झटकते बाहर की जानिब आया था। कुछ ही पल में वो अब थाने की काल कोठरी में इस आदमी के सामने मौजूद था। इस आदमी के हाथ बंधे हुए थे और ज़मीन पर बैठा था, जबकि ताबिश उसके सामने बड़ी कुर्सी पर बैठा था। इस आदमी के चेहरे पर थप्पड़ों के निशान वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। अब बोलो, किसके अंडर काम करते हो? देखो, अगर तुम मुझे बता दोगे सब कुछ सच सच, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। साहब, मैं सच कह रहा हूँ। इस आदमी ने रोते हुए हजार बार कहे अल्फाज दोबारा दोहराए थे। ताबिश ने एक ठंडी सांस भरी थी और हाथ बढ़ाकर इस आदमी का गिरेबान पकड़ा था। मैं तुमसे आराम से और प्यार से पूछ रहा हूँ, बता दो मुझे, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। इस आदमी के चेहरे पर वाज़ेह डरने के आसार नजर आ रहे थे। ठीक है, बता रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम मुझे कुछ नहीं करोगे? करना क्या है? क्या करना है क्या नहीं, इसका फैसला तो तुम मुझ पर छोड़ दो। मगर एक बात याद रखो, अगर मुझे लगा कि तुमने कहीं भी झूठ बोला है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ताबिश ने अपनी नज़रें उस पर जमाते कहा। उसका नाम मिर्ज़ा है। ताबिश ने अपना सर हिलाया था। ठीक है, अब तुम मुझे इस आदमी के बारे में बताओ कि वो कहाँ है। आदमी ने अपना सर झुकाया, फिर बोला, अगर मैंने बता दिया कि वो मेरी बेटी को उठवा देगा। मेरी बेटी 6 साल की। वो आदमी अब रो रहा था। ताबिश ने एक नज़र उसके आंसू देखे। अगर तुम्हें अपनी बेटी की इतनी परवाह होती तो तुम कभी भी इस तरह दूसरों की बेटियों को ना उठाते। ताबिश गुस्से से उठा और उस काल कोठरी से निकल गया था। वहां से निकलते ही उसने अपना मोबाइल निकाला और हसन को पैगाम भेजा। तुम्हारे पास वक्त कम है, इसलिए जितना जल्दी हो सके मुझे इस कैदी से सब कुछ उगलवा कर दो। रात का समा है और रात की स्याही ने अपने पंजे चारों तरफ फैला रखे थे। कराची के इस इलाके में आधे से ज़्यादा लोग नींद की आगोश में गौते लगा रहे थे, जबकि आधे से ज़्यादा अपनी अपनी छतों पर बैठे किसी से गुफ्त शनीद करने में मगन थे। ऐसे में इन सबसे अलग घर में फजर ने अपने 2 कमरों वाले घर में तहज्जुद की नमाज अदा कर ली थी। इसका पूरा सरापा सफ़ेद रंग की चादर ने ढांप रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा एकदम से चमकने लगा था। पूरी नमाज मुकम्मल करके वो अब दुआ के अंदाज में दो जानों बैठी थी। उसकी आंखें नम थी। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। दो आंसू उसकी आंखों से झलक कर हथेली में जज्ब हो गए थे। या अल्लाह, मैंने जो भी खता की है जाने अनजाने में, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। या अल्लाह, पिछले कुछ दिनों से मैं आपसे शिकवा कर रही थी। आपने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। हालांकि इसमें आप ही कोई मसलहत होगी जो सिर्फ आप जानते हैं। पिछले कुछ सालों से जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो आपने अपने पास पहले ही लिख रखा था। लेकिन पता है अल्लाह, आपको जब जब ऐसे हालात हम पर गुजरते हैं तो फिर हम ये नहीं समझते। इस वक्त हमारी सारी अक्लमंदी अनका हो जाती है, हमारी सारी समझने की सलाहियत नष्ट होकर रह जाती है। लेकिन बाद में जाकर समझ आता है कि जो भी हमारा नुकसान हुआ है वो अल्लाह की तरफ से पहले ही लिखा गया था। झलकता आंसू साफ किया और फिर दोबारा दुआ को हुई थी। अब मैं भी समझ गई। पहले आपने मेरी जान से प्यारी माँ को छीना, इसके बाद मेरे शौहर को छीना। मुझे पता है कि इनकी ज़िंदगी इतनी ही थी। इसके बाद मुझे और मेरे बेटे को दरबदर किया और वापस मुझे उसी बाप के दर पर छोड़ दिया जिसके ज़रिए से ये सब हुआ था। इस वक्त मैं आपसे बदल हो गई थी, इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती। मुझे माफ़ कर दें। उसने अपने दोनों हाथ चेहरे पर फेरे और खड़ी हुई, और तभी उसका बाप एक धाड़ की आवाज़ के साथ अंदर आया था। उसने जल्दी से अपना चेहरा खुश किया। मुझे पैसे दो, मेरा सामान ख़त्म हो गया है, मैं मर रहा हूँ।
वो इंतहाई जोर से कदम उठाते उसकी जानिब आए थे। शोर से रामेश उठ गया था और खौफजदा निगाहों से अपनी माँ को देख रहा था। मैं नहीं दे सकती बाबा, उसकी इन लाल होती आंखों में देखकर कहा। जुल्फ़िकार ने आओ देखा ना ताओ एक जोरदार थप्पड़ उसे रसीद किया था। मुझे मना करती है हाँ इंसान, तेरी इतनी जुर्रत। फजर जोर से लगने की वजह से पलंग पर गिर गई थी। रामेश फौरन उसकी जानिब आया था और उसने उसे खुद में भेज लिया। जुल्फ़िकार अब इसका पर्स ढूंढ रहे थे जो उन्हें काफ़ी तगोदो के बाद मिल गया था। वो फजर को एक नज़र देखकर बड़बड़ाते लड़खड़ाते हुए जा रहे थे। ये लड़की अब बाप को मना करेगी। फजर की आंखों से एक बार फिर आंसू रवां हो गए थे। कुछ ही देर गुजरी थी कि फजर की अजान हुए काफ़ी वक्त बीत गया था। वो नमाज से फारिग होकर इस वक्त अपने पलंग पर लेटने के अंदाज में बैठी थी। इसके हाथ में स्याह सरवट वाली डायरी मौजूद थी जिसके सफ़े पर वो पेन घसीटे जा रही थी। उसकी आंखों से अब आंसू भी बह रहे थे। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी, लेकिन उसके आंसू थे कि थमने का नाम न ले रहे थे। वो लिखने में इतना मसरूफ़ हुई कि खुद को दोबारा उसी मंजर में महसूस करने लगी जहाँ से उसकी बर्बादी शुरू हुई थी। जुल्फ़ी के जाते ही वो भागकर अपनी माँ के बेहोश वजूद के पास आई थी। उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगी। अम्मी अम्मी उठें। वो मुसलसल रोने लगी थी तो सोफे पर बैठा आदमी आकर कुछ फासले पर बैठा और उसका हाथ उठाकर नब्ज़ देखी थी। ये बेहोश हो चुकी हैं। फजर की समात में ये लफ्ज़ किसी शहर की मानंद घुले थे। उसे यकीन करने में दुश्वारी हुई। उसे बेख्तियार वो आगे हुई थी और फिर उससे बेख्तियार वो आगे हुई और फिर से उनका वजूद लरसने बेख्तियार वो आगे हुई थी और फिर उसे उनका वजूद ज़ोर से हिलाने लगी थी। अम्मी उठे। वो थक हार कर माँ के सीने से लगी रोने लगी थी। साथ बैठा आदमी उठा था, नजरें उन्हीं पर टिकी थी। आदमी ने पैंट की जेब से मोबाइल निकालते कान से लगाया। गाड़ी तैयार करो और जल्दी से एक एम्बुलेंस का इंतजाम भी करो, उन्होंने हुक्म सादर किया। उसके कुछ वक्त बाद ही एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी। कुछ लोग स्ट्रेचर उठाए अंदर की जानिब आए थे और फरखंदा का वजूद लिटाए वापसी अस्पताल की जानिब हो लिए। फजर इस पर खामोशी की रस्सी थामे बैठी रही। आज से उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। ये ज़िंदगी उसके साथ क्या खेल खेलने वाली थी उसे कुछ मालूम नहीं था। वो लोग अस्पताल पहुंचे तो वही पता चला कि फरखंदा का उसी वक्त इंतकाल हो चुका था। फजर ये सुनते बहुत चीखी। उसे खुद की दुनिया उजड़ती महसूस हुई थी। वो अकेली हो चुकी थी, कोई उसका साहिबान नहीं था। वो अस्पताल की राहदारी में बनी बेंच पर बैठी खाली नज़रों से सामने देखे जा रही थी। तभी सारे माकर फासले पर बैठे। मेरा वजूद शायद तुम्हें अभी बुरा लगे, हो सकता है तुम मुझसे नफरत करने लगो, मगर मैं फिर भी कुछ कहना चाहता हूँ। वो हाथ बांधे बैठे रहे और फजर के वजूद में कोई जुम्बिश ना हुई। तुम्हारा बाप तुम्हें काफ़ी अरसे से बेचने की कर रहा था। ये सब उसने पैसों के चक्कर में किया है, लेकिन क्यों? इसका जवाब तो तुम बखूबी जानती होगी। मैं उसे कई साल से जानता हूँ। वो मेरा दोस्त है और दोस्त की हैसियत से मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की, मगर जिस पर शैतान गालिब आ जाए वो इंसान किसी दूसरे की नहीं सुनता, बस अपनी करता है। फजर का खुद पर चढ़ाया हुआ खौल अब चटकने लगा था। जुल्फी को अगर तुम्हारी परवाह होती तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी ना करता। फजर ने खाली नज़रों से सारिम को देखा। मगर इसमें मेरी अम्मी का क्या कसूर था? आंखों में आंसू पैदा होकर बाहर निकलने के लिए मचलने लगे थे। वो लब काटते उनसे हम कलाम रही। मेरा वजूद उन्हें बर्दाश्त नहीं था, लेकिन मेरी माँ को तो बख्श देते। उनको किस जुर्म की सजा देकर मार डाला। लबों पर हाथ रखकर उमड़ती सिसकी रोकी थी। सारिम बस खामोश रहे। उनके पास कहने को कुछ ना रहा था। कुछ देर में फरखंदा की तदफीन हो चुकी थी। फजर का हाल ऐसा था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। उसे लग रहा था कि उसकी रूह भी माँ के साथ ही मिट्टी तले दफन कर दी गई है। यहाँ तो बस खाली और खोखला वजूद था और कुछ नहीं। आज वो कितनी खुशबाश थी। अचानक से उसकी ज़िंदगी ने क्या पलटा खाया था और वो कहीं की ना रही थी। क्या इस सब में वो बाबा को कसूरवार ठहराए या फिर अपनी किस्मत को, या फिर खुदा को? फजर अब सारिम की गाड़ी में पिछली नशीब पर बैठी थी और वो खुद ड्राइवर के साथ गाहे बगाहे मुड़कर फजर को देख रहे थे। वो मुसलसल रोए जा रही थी। सारिम को उसके यूं रोने पर तकलीफ हो रही थी। बेटा क्या तुम मेरी बात मानोगी? मुझे मालूम है कि ये मुनासिब वक्त नहीं, मगर उन्होंने बात आधी छोड़कर सर झुकाए कहा और फजर खामोश रहने पर ही आमादा रही। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। फजर उनकी बात पर बस खिड़की से बाहर चलते मनाजिर को देखे गई थी। सारिम उसकी खामोशी भांप कर चुप हो गए। जवाब दो फजर बेटा। वो उसका ख्वाब वो उसका जवाब सुनने के लिए बेचैन रही। फजर ने भीगी नज़रों से उन्हें देखा बस एक फजर ने भीगी नज़रों से उन्हें देखकर इस बात में सर हिला दिया था। सारिम को फिलहाल ये भी गनीमत लगा। उसने डायरी बंद की और फिर पास सोए रामेश के सर पर एक बोसा दिया था। ऑफिस के लिए तैयार होने चल दी थी। ये अब ऑफिस का मंजर है। वो अपने वर्क टेबल पर बैठी थी। उसने गुलाबी रंग के सलवार कमीज पहने, दुपट्टा सर पर सलीके से टिकाया हुआ था। उसका दिमाग किसी और जगह था, इसलिए उसने बजते फ़ोन की घंटी नहीं सुनी थी। तभी पास से गुजरती उसकी दोस्त ने उसके कंधे को हिलाए तो वो हाल में आई थी। फजर कब से फ़ोन बज रहा है तुम्हारा? उसने उसकी बात सुने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ हाशिर था। फजर आप मेरे रूम में फाइल्स लेकर आए।
अंदर से अंदाज में जल्दी झलक रही। सर मैं आती हूँ। वो जैसे ही उसके कमरे में आई तो उसने देखा कि हाशिर ने आज स्याह रंग के शर्ट के साथ स्याही पैंट कोट पहन रखा था। फजर उसके सामने आई तो उसने उसे बैठने का इशारा किया। वो कुर्सी खींचकर बैठ गई और अपने हाथ में मौजूद फाइल्स मेज पर धरी थी। हाशिर ने एक नज़र उन्हें देखा और इस बात में सर हिला दिया था। आपने मीटिंग का टाइम अरेंज कर दिया फजर? हाशिर ने उसे देखते पूछा था। जी सर मैंने कर दिया है। हाशिर ने उसकी बात सुनने इस बात में सर हिला दिया था। और टाइम क्या बताए? फजर ने उसकी बात गायब दिमागी से सुनी और फिर नफ़ी में सर हिला दी। हाशिर को उसका नफ़ी में सर हिलाना समझ नहीं आया था। फजर आपको कोई परेशानी है? क्या आपकी तबीयत ठीक है? उसने देखा फजर की आंखें सूजकर लाल हो रही। जी सर मैं ठीक। आप क्यों पूछ रहे हैं? उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। आपका ध्यान मेरी बातों की तरफ नहीं था। सॉरी सर। फजर ने माजरत की तो उसने दोनों हाथ उठाकर रोका था। इट्स ओके। क्या आपने मीटिंग का टाइम अरेंज कर दिया? उसने अपना सवाल एक बार फिर दोहराया था। जी सर उन्होंने 3 बजे आने को कहा है। उसकी बात सुनकर हाशिर ने सर हिलाया तो वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सर क्या मैं चली जाऊँ? उसने पूछा तो हाशिर ने कहा जी आप जा सकती हैं। वो कमरे से बाहर जा रही थी। पीछे हाशिर पुरसोच नज़रों से उसे जाते हुए देखने लगा। कुछ माह कबल कमरे में हर जानिब खूब अंधेरा था। शायद इस कमरे में रहने वाले मकीन को अंधेरा पसंद था। उसकी ज़िंदगी भी अंधेर थी, बिल्कुल उसके खाली वजूद की तरह। तभी अचानक कोई रोशनी फूटी और उसका चेहरा नजर आया था। किसी भी तासुर से पाक चेहरा। रोशनी का जरिया एक छोटी सी मोमबत्ती थी जो मेज़ के बीच बीच रखी हुई थी। उसने मोमबत्ती जलाकर जलती हुई देखनी स्याह आंखों के सामने की थी। इन आंखों में कुछ कुछ अब तकलीफ नजर आने लगी थी, जैसे कुछ ऐसा था जो इन आंखों से छीन लिया गया हो। यकायक आंखों में तपिश खुली थी। कुछ करने का अज़म जागा था। फिर उसी वक्त कमरे की खामोशी में मोबाइल ने खलल डाला था। उसने मोबाइल उठाकर स्पीकर पर लगा दिया था। अस्सलाम वालेकुम। किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी थी। इस वजूद के ऊपर अचानक गुस्से की शदीद लहर दौड़ी थी। सलाम दुआ का वक्त नहीं, जो काम कहा था वो बताओ। आवाज़ सर थी। सिराज उनकी एक कमज़ोरी है। और इन लफ्ज़ों के को सुनकर इत्मीनान पूरे जिस्म में उभरा था। लबों पर गहरी मुस्कुराहट पैदा हुई थी। तीली बुझकर अब राख की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। उसने सर सोफे की बुझ से टिका दिया था और फिर आगे क्या हुआ कुछ मालूम नहीं। बाप नंबर 2। जिंदगी क्या है एक तल्ख हकीकत। कहना है बास लोगों का है जिंदगी एक तल्ख हकीकत। क्या बताऊं मैं आपको इस तलखी की वजह। होती नहीं इब्तिदा तल्ख इसकी। कुछ हालात कुछ वाकयात घोल देते हैं इसमें तलखी का अंसर। मुतासर होते हैं हम खुद भी इससे कि घुल जाते हैं ज़हर अंदर हमारे। कभी लगती है फिर ये बात दुरुस्त कि है ज़िंदगी एक तल्ख हकीकत। असर मैसा शकील अहमद। हाल रात के 2 बज रहे थे। हर जी रूह सोने में मगन था। चांद भी बादलों की ओट में छुपा हुआ था। ऐसे में वो ऐसे में वो ब्लैक कोथे कोट पैंट के साथ मैचिंग मैचिंग हाई एंकलेट और चेहरे पर स्याह मास्क पहने, बालों को जूड़े में कैद करके, आवारा लटें चेहरे पर छोड़े क्रोफर से धीमी चाल चलती इस मंजर का हिस्सा बनी थी। आज इस सिक्योरिटी गार्ड ने उसको रोकने की जरूरत ना की थी। एक सरसी निगाह उस पर डालते वो अंदर को चली थी। वो राहदारियों से गुजरते हुए एक मखसूस कमरे में गई थी। सामने ही सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस सिराज टांग पर टांग चढ़ाए बैठे थे। अंगूठियों से भरा हाथ सोफे के हत्थे पर जमाए और दूसरे से चाय का भाप उड़ाता मग पकड़े उसकी तरफ देख रहे थे। आओ आओ तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था बेसब्री से। दांतों की नुमाइश करते वो बोले थे। क्या काम है इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? वो रुखाई से बोली थी। वो उनके सामने ही रखी वो उनके सामने ही खड़ी रही। बैठने की उसने जहमत ना की। आराम से पहले बैठ तो जाओ। सिराज ने देखा वो ऐसे ही बदस्तूर खड़ी उन्हें देख रही थी। काम बताए मुझे। लट मार लहजे में बोली थी। अरे बैठ तो जाओ अभी तो। यहाँ पर मैं बैठने नहीं आई। ऐसी क्या कामत आ गई थी जो मुझे फ़ोन करके बुलाया? 1000 दफ़ा कहा है पर्सनल नंबर पर कॉल मत किया करें। उनकी बात काटते वो खड़े खड़े गुस्से में बोली। लंबी बात है बैठ जाओ। वो दोबारा पुरसकून लहजे में बोले तो वो सर झटक कर बैठ गई। कैसी हो? उन्होंने दोबारा पूछा। काम की बात करें। ये खैर खैरियत पूछना और बताना मुझे पसंद नहीं। अब बताएं। सिराज ने उनकी बात पर सांस बाहर को खारिज की। हमारे अड्डे पर धावा बोला। पुलिस ने वो संजीदा सी आवाज़ में उसकी आंखों में देखते बोले थे। चेहरे पर मौजूद मास्क की वजह से उसके तासुरात नजर न आए, मगर एकदम उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़कर वापस अपनी जगह पर आ गई थी। सिराज की मुस्कुराहट गहरी हुई। व्हाट ये कब हुआ? हा हा हा। सिराज का कहका उभरा था। इसका मतलब मेरा अंदाजा दुरुस्त था कि तुम्हें वाकई कुछ मालूम नहीं। उसकी आंखों में पनपते सवाल का जवाब उसके बोलने से पहले ही दे दिया गया। मुझे मिर्जा ने बताया 2 दिन पहले। और आप मुझे अब बता रहे हैं? उसे सामने मौजूद इंसान पर शदीद किस्म का गुस्सा आया था। मैंने तुमसे रब्ता करने की कोशिश की थी मगर रब्ता ना हो सका।
अब के वो सोफे से उठी और परेशानी में इधर उधर चक्कर काटने लगी थी। जो भी था सबसे पहले मुझे पता लगना चाहिए था, मुझे। शहादत की उंगली से अपनी तरफ इशारा करते वो बोली, आंखों में शरारे फूट रहे थे। ये कैसे बंदे आपने रखे हैं, किसी काम के नहीं। पहले वो सिक्योरिटी गार्ड और अब ये। कोई फायदा नहीं आपका। दो उंगलियों से वो माथा मसलते बोली। सिराज एकदम आग बबूला होते उसकी तरफ आए थे। एक मिनट, ये क्या बोला अभी तुमने? मेरा कोई फायदा नहीं। पिछले 25 साल से इस धंधे में हैं। मैंने ऐसे लाखों उतार चढ़ाव देखे हैं और तुम बस एक दफा में ही हार मान गई। आखिर में वो इस्तेजाइया से हंसे हंसे थी। फॉक्सी के जिस्म में शोला सा उभरा था। आग ने हर चीज को लपेट में ले लिया था। मैं फॉक्सी हूँ, फॉक्सी दी फॉक्स। समझ क्या रखा है आपने? इस छोटे से वाक्य से डर कर बैठ जाऊंगी? इनके सामने दो बदो खड़ी वो तंजिया हंसी थी। अगर आपने 25 साल दिए हैं तो मैं भी बचपन से इसी माहौल की आदी। आम लड़कियों की तरह छोटे छोटे मसलों पर रोने नहीं बैठ जाती। इसीलिए ये मुझे ताने मत दिया करें आप। बुजुर्ग की जवाब देकर बाहर की जानिब गामजन हो गई थी कि सिराज की आवाज़ ने उसके कदम रोके। बॉस की बॉस का दोबारा पैगाम आया है तुम्हारे लिए। वो रुक गई थी पर पीछे नहीं मुड़ी। इनका कहना है कि फॉक्सी को कहो अपने आसपास मौजूद लोगों पर नजर रखे, क्योंकि आजकल लोग वो नहीं हैं जो खुद को दिखाते हैं। इन लोगों ने अपना असली चेहरा छुपाकर इन पर मखौटा सजा रखा है। फॉक्सी ने पीछे मुड़कर उन्हें देखा, सर्द अंदाज में। इनसे कहिएगा कि मैं उनकी बात से इत्तेफाक करती हूँ और ये भी कहिएगा कि उनसे ज़्यादा जानती हूँ कि किसके चेहरे किसके चेहरे पर मखौटा है और कौन सच्चा है। ये कहते साथ ही वो जैसे इस इमारत में दाखिल हुई थी वैसे ही रुखसत भी हो गई। चारों तरफ रात अपने पर फैलाए हुए थी। चांद भी बादलों के जेरे असर कुछ फीका फीका सा लग रहा था। ऐसे में सफ़ेद दीवारों वाले 2 मंजिला घर की बलाई मंजिल पर वाक़ई सबसे आखिरी कमरे में नजरें दौड़ाएं तो फिर पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। रोशनी का जरिया बस एक जार में जलती मोमबत्ती का शोला था, जो रोशनी के साथ साथ मसहूर कुन खुशबू भी बिखेर रहा था। इस शोले की पैरवी में आगे बढ़े तो वो क्या देखते हैं कि शीशे के सामने एक हिबला खड़ा है। वो आदमजाद आंखों में सुर्ख डोरे लिए सख्त अजियत में मुब्तला बड़ी फुर्सत से अपने ही अक्स को घूरे खड़ा अपने ही अक्स को खड़े घूर रहा था, जैसे दुनिया में इससे ज़्यादा और ज़रूरी काम कोई ना हो। अपने चेहरे के करख नक्श को देखते पल भर में उसके करख चेहरे की जगह मासूम से बचकाना नकुश ने ले ली थी। मासूमियत से भरा चेहरा, शफाफ और उम्मीदों से भरपूर मुस्कुराहट। एक 16 साल लड़की कमरे की खिड़की से नजर आते अपने बाप पर नजरें जमाए खड़ी थी। इस आदमी ने सफ़ेद शलवार कमीज पर बास्केट पहनी हुई थी। बालों को जैसे जमाए वो अपने साथ खड़े आदमी की बात सुन रहा था। खुद पर किसी की नजरें महसूस करते वो शातराना अंदाज में मुस्कुराया। बॉस फिर क्या करना है, क्योंकि वो आपकी जान नहीं छोड़ने वाला बहुत चालाक आदमी है। सिराज ने अपने साथ खड़े आदमी को देखते कहा। हाँ, ये तो मैं जान गया हूँ। काफ़ी वक्त से वो जिसके पीछे पड़े तो फिर जान नहीं छोड़ता। इस आदमी ने अपने सीने पर बाजू बांधे। हमें इस आदमी का मुंह बंद करना होगा। बॉस ने एक सर्द नज़र से सिराज को देखा, फिर तंजिया मुस्कुराए थे। तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे चुप होगा? तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे चुप होगा? उन्होंने कहकर एक गहरा वक्फा लिया, फिर गोया हुई। नहीं, वो एक मुहिब्बुल वतन इंसान है। वो इतनी आसानी से रिश्वत नहीं लेगा। इसीलिए तो इस सब को सोचने की जरूरत नहीं है। सिराज, मैंने जो कहा है तुम बस वो करो। सिराज ने उसकी बात सुने इस बात में सर हिला दिया। और बताओ कि ड्रग्स का क्या बना फिर? ठीक से पहुंच गई ना? कोई मसला तो पेश नहीं आया? बॉस ने सवालिया नज़रों से सिराज को देखा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ। बस एक दो बंदों ने किया था, इनका मुंह बंद करना पड़ा। वापस अपनी नज़रें खिड़की की जानिब की तो क्या देखते हैं कि वो लड़की अब भी खिड़की पर इस्तादा थी। अब उसकी आंखों में एक तपिश सी थी, एक ऐसी तपिश जो आसानी से मिटने वाली ना थी। वो वजूद इस आईने में डूबा अपने माजी को खोज रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक सेकंड से भी कम वक्फे में वो वजूद अपने हाल में आया था। एक दफ़ा फिर उसे इस मासूम से चेहरे की जगह उनकी करख तासुरात ने ले ली थी। आ जाओ, ये एक लफ्ज़ी जवाब आया था। अंदर आने वाली एक 28 साला मुलाजमा थी जो अंधेरे में डूबे कमरे को देखकर थोड़ा सा हिचकिचाई थी। अगर कमरे का मुआयना हो गया हो तो इस वक्त मुझे डिस्टर्ब करने की वजह बताएंगी आप? उसने इंतहाई सपाट से आवाज़ में बोला था। वो साहब। करख चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट आई जो पल भर में ही मादूम हो गई थी। इनको बिठा दो ड्राइंग रूम में और दरवाज़ा बंद करके जाना। वो नीचे आई तो अपने सामने इसी शख्स को ड्राइंग रूम में बैठे पाया था जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी। वो उसी के मुंतज़िर थे। वो शक्ल से देखने में नफीस इंसान लग रहे थे। उस शख्स ने सफ़ेद शलवार कमीज़ के साथ बास्केट पहनी थी। हाथ में सफ़ेद रंग की एक चमकती हुई घड़ी थी जो शायद किसी ब्रांड की थी। उनके खतोखाल एक आम इंसान की तरह ही थे, लेकिन उनकी शख्सियत में कुछ ऐसा था जिसे लोग देखकर खुद ही खिंच आते हैं। इनके बाल हल्की सुरमई थी। उम्र 60 के करीब थी। वो उसे देख रहे थे जो अब अंदर आकर उनके सामने सोफे पर टांग जमाए दोनों हाथ घुटनों के गिर्द बांधे बैठी थी। होठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी।
और वो उन्हें ही देख रही थी। कैसी हो फॉक्सी? उन्होंने उसे देखकर पूछा था। फॉक्सी कभी अपनी खैरियत नहीं बताया करती। आंखों में सर सा तासुर लिए वो बोली थी। वो शख्स कई पहर उसे देखते रहे, फिर बोले, मैं तुमसे मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ। उनकी बात सुनकर उसने मुख्तसर सा मुस्कुराकर सर झटका था। लेकिन हमेशा की तरह आपको ही आना पड़ा मेरे पास। फॉक्सी की आंखों में तमस्कुर था। तुम ऐसी तो नहीं थी पहले। उन्होंने अफसरदा निगाहों से उस लड़की को देखा था। नहीं थी, मानती हूँ मैंने कब मना किया इस बात से। वो अब भी उनकी आंखों में देखकर बात कर रही थी, लेकिन इन आंखों में कुछ ऐसा था कि जो देखने के काबिल नहीं था, जिससे बॉस बार बार नजरें चुरा रहे थे। लेकिन आज अगर मैं बदली नजर आ रही हूँ तो इसमें आपका कसूर है, क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया था ऐसा बनने के लिए। मैंने तुम्हारी बेहतरी। वो कुछ कहते इससे पहले ही उसने हाथ उठाकर रोका था। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी, किसी ने फॉक्सी की मासूमियत का ख्याल नहीं किया तो अब फॉक्सी भी किसी की मासूमियत का ख्याल नहीं करेगी। जा सकते हैं आप। वो अपना गाउन संभालती जीने तय करती वापस अपने कमरे में गुम हो गई। बॉस को गुस्सा तो शदीद आया, मगर जब्त कर गए थे। बाकी क्लिक में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हर किस ना भूलें और साथ ही कमेंट भी ज़रूर किया करें कि आपको नावल कैसा लग रहा है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।